Hello, Shantanu ji. Hi. We're waiting for the rest of the participation. Hi, Gopal. मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है. Hi everyone. अभी तक we have Paras, am I audible to you? Can you just, try and speak up? Hello. You are audible, Nakul. Perfect. Just keep a check on the audio. I'm making you the co-host. जो भी लोग आते हैं, you have the registration list. Accordingly admit कर देना, ठीक है? You're the co-host now. Admit का. We're just waiting for more participation, everyone. All right, hi everyone. We can switch on our videos. It's going to be an interactive session. So if most of you are comfortable, we can switch on the videos and unmute ourselves. Interaction से start करेंगे, कुछ बात करते रहेंगे हम सब लोग. It's not going to be one way. So आप अपने mics कर सकते हैं. So I'm just going to acknowledge जो लोग अभी तक आए हैं यहाँ पे session में. Let's start with Gopal. You were the first person in. Hi Gopal. Can you unmute yourself? Hello. Yeah, I just wanted to take your expectations. What exactly are we expecting from today's session from your side?
क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं सेशन में, क्या don't know much. Let's see what happens. उसके बाद मैं बता पाऊंगा कि what I'm expecting right now. अभी तो can't say anything much. परफेक्ट यार. आई गेस 9 हो चुके हैं. We can begin with the session as soon as we are 15, I suppose, 10 or 15. So that's what we have for today. आज अपना सेशन हमने ऑलरेडी प्लान किया था. वी विल टॉक अबाउट मेंटल टफनेस टुडे. ये सेशन हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे इम्पोर्टेंट इमोशन के बारे में बात करेंगे, which is anger. गुस्से से सबका प्रॉब्लम. And one thing I commonly say is anger has caused more depressions than sadness has even tried. Sorrow cannot cause as much depression as much as anger can. गुस्से से सबसे ज़्यादा depression आता है. Because anger is, produced out of 2 emotions. Either you're very afraid or you're really proud of something. Fear. That's the 2 things that causes anger. Both of them are destructive. So firstly, we'll talk about anger, and not in a general sense कि ऊपर आँख बंद 10 से 9 तक 10 से 1 तक की गिनती करो. It's going to be a very practical and exact description of how biologically anger works, how anger gets into your brain. That's how I'm going to go about sharing about anger. And अभी हम नंबर में थोड़े से कम है, so इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि people want to just start talking about their experiences with anger first of all. आपका गुस्से के साथ खुद का क्या एक्सपीरियंस है, and have you faced troubles because of anger? So as we promised, this is going to be interactive. So anybody who wants to share their experience with anger, कि गुस्से से, how anger disrupts their schedule, how their life is affected because of their anger, I can take their points first of all. Anybody, you can raise your hands, you can unmute yourself, and we can talk about your anger. We'll start from there. Anyone? कोई है जो बात करना चाहेगा अपने गुस्से के बारे में या उसकी गुस्से से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में? All right. अगर नहीं भी है तो let's move to the important part, कि जहां हम गुस्से को आज डिस्कस करने वाले हैं. हम लोग गुस्से के बारे में आपके बात भी करेंगे. How is anger being caused? We are in for it. पहली बात, if we are even uncomfortable in coming on the screen, I think we would be comfortable by coming on the chat room. So chat say we can say, I'm not audible. Okay, Paras, Gopal, can you check if I'm audible or not properly? Hello? Yeah, Gopal, am I audible properly? Yeah, I can hear you properly. All right, Kanika, I think there is a problem with the audio. Just your internet or something, because I can ask other people. Okay, if I'm audible, we can give me a G to G, good to go. Rest of the participants use the chat room. In chat room से बात करेंगे if it's not possible through the audio. Come on, chat room पे G to G का message मिलेगा. Kriti says yes, audible. Hi Kriti. Hi Gopal, good to go. Neetu Pradhan, audible. I am audible. Yes, I am audible. So we're good to go. I need a message of GTG or G2G. Come on, good to go. Can we go ahead with the anger part? You are audible, Nakul. Perfect. Messages, guys. Rest of the participants, good to go. Perfect. Finally, we get a good to go from Kanika, and I think we are good to go now. Okay. ये बायोलॉजिकल सा डायग्राम सबको स्क्रीन पे दिख रहा है? यस और नो? मैसेज में फटाफट से Y और N. Are we able to see this biological diagram on our screen? Shantanu gives me a thumbs up. Thank you, Shantanu. And rest of us, are we able to see the diagram? Yes, yes, yes. Okay. देखो ये बहुत प्यारा डायग्राम है, मैंने अपने हाथ से बनाया है. As if you're gonna believe it. नहीं, मैंने हाथ से नहीं बनाया, मैंने गूगल से डाउनलोड किया. बट है ऐसा ही, दिमाग ऐसा ही होता है. Just trust me. You guys trust me? I'm sure you do. Okay. Important part ये है. Do you see this blue part? पूरा ऊपर जितना blue बड़ा सा part है. This is actually called the cortex.
जिसके ऊपर लिखा भी है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये ब्रेन का थिंकिंग डिवीजन है। यहां से आपके सारे थॉट्स, आपके प्रोसेस होते हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, सब कुछ इसी पार्ट में पूरी तरह समाया हुआ है। मतलब इवन इफ यू आर गोइंग टू डू 1+1, वो यही प्रोसेस होता है जाके। अब आप एक ध्यान से इस पूरे डायग्राम को देखो, इसमें एक छोटू सा पीस है नीचे ऑरेंज कलर का, दैट्स कॉल्ड अमिगडाला। वो गुस्से को कॉज करता है। आप ये देखो, एक छोटा बादाम जितने साइज का होता है आपके दिमाग में, और ये इतना बवाल मचा सकता है ना, जिसको गुस्सा आता है उसको पता है। Anybody who has anger issues, they know how, you know, how hard this part can be and how difficult it can be when this part is activated. अभी क्या है, एंगर में आपकी बॉडी में एड्रेनलिन नाम का हार्मोन भी आता है। सो एंगर इज एक्चुअली इनिशियली जो ह्यूमन या एनिमल्स के अंदर एंगर डाला गया, दैट इमोशन इज अ रिस्पॉन्स टू थ्रेट। जब भी हमारे ह्यूमंस के ऊपर एक थ्रेट होता था या कोई डेंजर हमारे ऊपर आ जाता था, वी यूज्ड टू रिएक्ट इन अ वे सो दैट आवर थिंकिंग डिवीजन इज स्विच्ड ऑफ। अब आप सोचिए, सामने थ्रेट है, कोई एनिमल खड़ा है, आप मरने वाले हो या जीने वाले हो। अब लाइफ में सबसे ज्यादा गलतियां जो होती हैं वो हिचकिचाहट में होती है, सबसे ज्यादा डेथ जो होती है वो हिचकिचाहट में होती है। इवन इफ वी टॉक अबाउट रोड एक्सीडेंट्स, स्पीड से इतने एक्सीडेंट नहीं होते जितना घबराहट से होते हैं, ये करूं या ना करूं। सो एट सर्टेन पॉइंट्स वी डू रियलाइज दैट द ब्रेन का जो फंक्शनिंग है उसे रोकना जरूरी भी होता है। पीपल यूज टर्म्स लाइक ओवर थिंकिंग, कि आई हैव ओवर थिंकिंग इश्यूज। आई विल कम टू दैट, हाउ दैट इज अ वेरी स्टूपिड थिंग टू से। ओवर थिंकिंग के कोई इश्यूज नहीं होते हैं, इट्स ईदर इंपॉर्टेंट टू यू और नॉट इंपॉर्टेंट टू यू। समटाइम्स ओवर थिंकिंग इज अ मिसयूज टर्म, कि बस आपने किसी की बात नहीं सुननी है तो आप बोल दीजिए कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग कभी कभी इस सिचुएशन में कही जा सकती है व्हेन यू हैव टू टेक एन इंपल्सिव एक्शन, और आप एक्शन नहीं ले रहे हैं बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट इट। सो एमिगडाला का पोजिशनिंग जो है वो एक बहुत लॉजिकल रीजन से है। बट होता क्या है, बिकॉज ह्यूमंस या एनिमल्स भी कभी कभी अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा ओबे करते हैं। या तो अपने दिमाग को गुलाम बना लो या उसके गुलाम बन जाओ। यू डोंट हैव अ मिडिल, बीच का रास्ता नहीं है अपने पास, राइट? तो बीच का रास्ता नहीं है, तो दिमाग के जब हम गुलाम बन जाते हैं, जितने लोग अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वो एक्चुअली इस छोटे से अमिगडाला को कंट्रोल नहीं कर पाते। आप एक बात ध्यान रखना, जिसको भी आपके आसपास बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, whosoever has anger management issues, उसको माफ करना शुरू कर दो, बिकॉज एक्चुअली वो बहुत स्केयर्ड इंसान है, वो अंदर से पैरानॉइड है, इसीलिए उसे गुस्सा इतना आता है। बिकॉज एट द एंड वो फियर का रिस्पॉन्स है, एंगर। वो इतना घबराता है लाइफ से कि कहीं ना कहीं वो फियर में उसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। ध्यान से समझ लेते हैं इस चीज को। हमें क्या करना है इस पूरे इशू का, कि अगर स्केयर्ड होने से एंगर आता है नहीं आता है, आर इशू इज कि इसका यूटिलाइजेशन कैसे करें। देखो, बहुत लोग आपको सिखाते हैं कि आप उल्टी गिनती करना शुरू करो अगर आपको गुस्से को काबू करना है, या आप कैलकुलेशंस करो दिमाग में। देखो क्या होता है, जब थ्रेट हमें रिकॉग्नाइज होता है ना, तो एमिगडाला एक्टिवेट होता है और हमारी थिंकिंग डिवीजन को टेक ओवर कर लेता है। वो टेक ओवर इतना डेंजरस होता है कि आपसे कुछ भी करवा सकता है। आप चीजें तोड़ सकते हो, खुद को हर्ट कर सकते हो, और अपनों को भी हर्ट करने से पहले आप सोचते नहीं हो उस टाइम। आई एम श्योर कहीं ना कहीं एंगर को लेकर सबके साथ इश्यूज हुआ है, मेरे साथ भी होता है। आई मीन इवन इफ आई एम टेकिंग दिस सेशन, आई डोंट से आई एम परफेक्ट, आई जस्ट से दैट दीज आर द थिंग्स वी नीड टू डू एंड वी हैव टू गेट क्लोजर टू परफेक्शन। ठीक है, तो अपन अभी गुस्से को समझ रहे हैं ना। गुस्से का मूल कारण है कि हम डरते हैं, और हमारी थिंकिंग जो है वो फ्रोजन होती है उस टाइम के लिए। अब उल्टी गिनती करने से गुस्सा चला जाता है, या फिर कैलकुलेशंस करने से चला जाता है, नॉट ट्रू। द ट्रिक इज, मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ। आई एम नॉट गोना गिव यू वो कुंजी नहीं है जो एग्जाम पास कराती है। लाइफ का एग्जाम बहुत लंबा है, तो आपको उसका कोर रीजन ऑफ सोल्यूशन पता होना जरूरी है। सिर्फ कुंजी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ आपको ये पता उल्टी गिनती करो, एक टाइम पे उल्टी गिनती याद हो जाती है, एक टाइम पे कैलकुलेशंस याद होती है, 2+2 कर रहे हो दिमाग में, कोई फायदा नहीं। द आइडिया इज टू एक्टिवेट दिस पार्ट। ये कोर्टेक्स जो आपका ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ना, द मोमेंट दिस इज एक्टिवेटेड, उसी मोमेंट आपके अमिगडाला की पावर खत्म होनी शुरू हो जाती है। कम नहीं, खत्म होनी शुरू हो जाती है। राइट? ध्यान से समझिए इस चीज को। जस्ट गिव मी 2 सेकेंड्स।
this is the exact working of this amygdala. The idea is not to उल्टी गिनती करने से गुस्सा जाता है, ना ही कैलकुलेशंस करने से जाता है. गुस्सा जाता है जब आप सोचना शुरू करते हो. Now what is something that जिसके बारे में हमें हमेशा ही सोचना पड़ेगा और वो चीज हमें गुस्से में याद भी आएगी. कोई आइडिया लगा सकता है कि आप एक ऐसी चीज बना लो कि आप उसके बारे में सोच ही लोगे जब गुस्सा आएगा या नहीं आएगा, वो चीज आप हमेशा सोचोगे क्योंकि वो पॉइंट पे वो चीज एग्जिस्ट करेगी ही करेगी. Anybody who wants to contribute, who wants to say something कि गुस्से में ऐसा क्या कर सकते हैं? You know the idea. इस cerebral cortex को activate करना है आपको जब गुस्सा आए. Anybody who wants to tell कि how exactly you can activate thinking and what thinking can you start? कुछ एग्जांपल्स आपको पता है जो ज्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर्स बता के चले जाते हैं कि उल्टी गिनती करिए, 2 2 1 5 को मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिए, 3 3 2 2 10. ऐसी चीजें करते रहोगे बिल्कुल गुस्सा जाएगा, बट हर बार ये वर्क नहीं करेगा. Rishmeet, you have unmuted yourself. Do you want to say something? What exactly is your idea? 1 second, my video, actually your audio is not audible. 1 second. You're audible to us, but 1 second. anybody can try. I can see. Wow, wait a minute. I can see you as well on the screen. I can have your inputs. Most welcome to speak. Use the Can't unmute. think of anything right now. Okay, that's what happens when you're angry as well, no? You can't think of anything at that point. Exactly. Actually, that's what I was thinking when you were saying ना what to think. I was thinking कि उस time पे कुछ नहीं समझ में आता, सिर्फ गुस्सा आ रहा होता है. That is the idea. Gussa is that because I told you ना, इसका creation is accordingly create किया गया था गुस्से को कि आप सोचना बंद कर दो उस समय. But then people turned hostages to their anger. With life, people turned hostages. I'll tell you what to think about. I want to tell you, but still, देखो, I'll give you the idea and I'll want you to think about क्या आंसर हो सकता है. कभी-कभी होता है ना आपको आंसर नहीं बता पा रहा होता, सामने वाला आंसर नहीं दिखाता, बट ये कहता है आंसर इसके आसपास कुछ है. तो I'll tell you आसपास किसके है वो. सिंपल है. आपको गुस्सा आ रहा है जिस समय, तो कैलकुलेट करने के लिए नंबर्स याद ना है, ये हो सकता है. उल्टी गिनती याद ना है, हो सकता है. बट एक चीज जरूर याद आ सकती है. क्या याद होता है गुस्से के टाइम? क्या याद होता है सबसे जरूरी? लेट्स से मेरे से आपको लड़ाई हुई, मेरे पे गुस्सा आ रहा है कि इसने मेरा टाइम खराब कर दिया, मेरी शाम खराब कर दी, ढंग से बोलना आता नहीं, बकवास कर रहे हैं, बैठा हुआ है स्क्रीन पे. अब इस समय क्या दिखाई दे रहा है आपको? I'm totally blind at that time. Totally blind at that time. At that time I'm totally blind. I don't. Rishmeet, there's one thing you will always see when you're angry. You're missing out the point. एक छोटा सा point miss कर रहे हो. गुस्से में एक चीज हमेशा. Paras, you have breathtaking anger management issues. I want you to speak. क्या गुस्से में एक चीज तो दिखाई देती है? दूसरी गलती. एक चीज दिखती है. जिस वजह से या जिसकी वजह से गुस्सा आता है. Galaxy A5, पारस इनको एडमिट मत करना because ये स्कैम्स हो सकते हैं. तो I'm asking, दर्शक एक चीज जरूर जिसकी वजह से गुस्सा आता है. गुस्सा दिलाया. Sorry. जिसकी वजह से गुस्सा आता है. गुस्सा दिलाया किसने? जिस चीज से गुस्सा आता है. ये तो याद रहता है. बिल्कुल. I'm going to make it two-fold यहाँ से. यहाँ से दो तरीके से आपको गुस्सा करना है, ठीक है? One thing is जिसकी वजह से गुस्सा आया है या जिस लेट्स से आपको नौकरी की वजह से, अपनी पढ़ाई की वजह से आपको गुस्सा आया था. सबसे पहले तो ये देखो वो नौकरी और वो पढ़ाई आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है. तो उस पर गुस्सा करना बनता है. आपका बट कभी-कभी आपके हाथ में नहीं होता. अभी बता रहा हूँ. You don't know कि it's important or not. I know हमारे हाथ में कभी नहीं होता है. मेरे को तो कह रहा हूँ ना एक्टिवेट करना है. अब इतने साल बिस्मित आपने गुस्सा प्रैक्टिस किया है. 15 साल गुस्सा प्रैक्टिस करके आ रहे हो. मेरे से ये मत एक्सपेक्ट करो कि आज सेशन के एंड में जाके बिस्मित बुद्धा बन जाओगे. उसके सिर पे ऐसे बुद्धा वाले बाल ऐसे ध्यान मुद्रा में होगी. That's not gonna happen. I am also मेरे पास वही कृष्ण जी वाली पावर्स नहीं है ऐसे हाथ करूंगा और let's admit and try to know who this person is. Maybe this is a participant. ऐसे शुरू करना चाहते हैं. तो एक तो गुस्सा किसने दिलाया ये याद होता है. एक गुस्सा किस वजह से आया ये याद होता है. विश्मित ऑलवेज ना अभी क्या करना है, मैं ये नहीं कह रहा इसी से तेरा गुस्सा शांत होगा, नहीं हो पाएगा. 1 घंटे का टाइम है मेरे पास, मैं और बोलूंगा. अभी मेरे पास बहुत मटेरियल है. तो at the end of the day, can you afford to lose that job or that person? No. No, you don't know. No, sometimes you can.
At the end of the day, अगर चाइना के प्रेसिडेंट पे मुझे इस समय गुस्सा आ जाए, I can afford to lose that person from the world. Come on, bring him on. The reality राइट, उस टाइम पे तो ऐसे ही लगता है. exactly. The thing is, एक चीज हमेशा होगी सोचने के लिए, जिसमें कोर्टेक्स लगेगा वो ऐसी दिखती होगी. You know, that could be fiery होगी, आग जैसी. That is consequences. हमारे गुस्से के consequences आप सोच सकते हो उस समय. से लड़ रहा हूँ, किस जगह पे लड़ रहा हूँ, इससे consequences दिमाग में हमेशा आ जाएंगे. Can you all make a note of it? I know most of the people are seriously taking this session. Please make a note of it. Who am I fighting with and where am I fighting? ये दो question अपने आप से हमेशा पूछ लेना, because then you will realize you can't afford to lose that person or that job. आधी जिंदगी मुझे गुस्सा इसलिए नहीं आया, मुझे डर लगता था मेरी नौकरी ना चली जाए. मैं वाकलेस में रहा हूँ यार, 1.5-2 साल 2.5 साल मुझे गुस्सा आता था, रोज तड़पता था, मैं किसी से कुछ नहीं बोलता था. नौकरी जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, बस सब अफोर्ड कर सकते. पैसा अच्छा देते हैं वो, सिंपल बता रहा हूँ मैं. तो ऐसी है, आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉन्सिक्वेंसेस एक ऐसी चीज है जो हमेशा सोच सकते हैं हम, राइट? तो ये जो कोर्टेक्स है ना, मेरा माउस का पॉइंटर दिख रहा है रश्मि? सॉरी, माउस का पॉइंटर नहीं दिखता नहीं है इस पे. ब्लू कलर का जो पोर्शन है व्हिच इज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इसको अगर आपने पावर दी तो ये छोटा बच्चा है ना, ये धीरे धीरे निरस्त होगा, बिल्कुल एकदम नहीं हो जाएगा. ठीक है, धीरे धीरे होगा, इसको टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे इसकी पावर कम होती जाएगी. एंड जब इसकी पावर कंट्रोल में आ गई आपके, अब जब चाहो तो ब्लू पोर्शन को, ऐसे दिखने वाले पोर्शन को एक्टिवेट कर सको और इसको खत्म कर सको. दैट्स व्हेन यू हैव कंट्रोल ओवर योर एंगर. और एक चीज जरूर बोलूंगा, अपने साथ हार्श मत होना. सेशन के बाद या किसी भी बड़े सेशन के बाद गुस्सा करना, रोना, इमोशनल होना कोई खराब बात नहीं है. हम इंसान है, हमारे अंदर इमोशंस हैं. it's a human behavior, you can't do anything in that. But that should not be an excuse as well कि हम ऐसे ही करते जाएं. हाँ, कभी हो जाए तो खुद पे थोड़ा लाइट जाना, मतलब खुद से बैर मत ले लेना, खुद को मत पनिश करने लग जाना कि यार मुझसे ऐसा क्यों हुआ. इंसान हो जाता है. हमारे नाम के आगे वासुदेव थोड़ी लगा है ना, हमारे को किसी हमारे को कोई ऐसी बांसुरी नहीं दी ऊपर वाले ने. वी आर नॉट गॉड, वी आर ह्यूमंस. हमेशा अपने आप को ह्यूमन ट्रीट करो. छोटी मोटी गलती तो भगवान से भी होती है, ऐसा नहीं है उनसे गलती नहीं होती थी. एट द एंड ऑफ द डे लव कुश ने आके सुनाई थी ना क्या गलतियां हुई थी राम से, तो गलती भगवान से भी हो जाती है. हम तो फिर तो अगली बार अगर भगवान से कहते ना, आप ऊपर जाके भगवान को क्या मुंह दिखाओगे, हम उनसे कहेंगे तुमने भी तो की थी, हमसे थोड़ी सी हो गई तो क्या हो गया. एट द एंड जैसे अपने पेरेंट्स से डील करते हैं, एक्टिवेट करना है नीचे वाले अमेगडाला को. अमेगडाला को छोड़ना है, उसको एक्टिवेट कर दे तो बवाल मच जाएगा. अब किसी को ये डाउट हो कि ये एक छुटकू सा बादाम का दाना इतने बड़े कॉर्टेक्स, 1.5 किलो का दिमाग होता है हमारा, इस 1.5 किलो में मुश्किल से 5 ग्राम का है ये, आधे तोले का, और ये इसको पूरे को बवाल बना देता है. लेकिन किस किस के घर में बच्चे हैं, यहाँ पे छोटे बच्चे हैं किसी के घर में? Yes, I have a daughter of 10 months. 10 months done. आप अभी मैं जो बोल रहा हूँ आप जरूर समझ जाओगे. Anybody else who has a little toddler or something in their home, उनको मैं एक चीज बताऊंगा, वो अब भी समझ जाएंगे. छोटे बच्चे जिसके भी घर में है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ. छोटे बच्चे पता है कैसे होते हैं? इतना सा होता है वो, 1.5 किलो का. 100 किलो के आदमी होगा ना, बंदर बना देता है वो, बवाल मच जाता है पूरे घर में. लेकिन क्या करना है, करना क्या है? घर की थिंकिंग डिवीजन कौन होती है? घर की थिंकिंग डिवीजन कौन होती है? घर की थिंकिंग डिवीजन होती है उसकी मदर, हाउस होल्ड लेडी ऑफ द हाउस. द वुमन ऑफ द हाउस इज एक्चुअली द थिंकिंग डिवीजन ऑफ थिंक टैंक. वही होती है. आदमी सिर्फ गुरु, वो भ्रम उसका टूट जाता है बहुत जल्दी. दर्शका सबके चेहरे पे बड़ी बड़ी स्माइल आ जाती है कि ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें हो रही हैं अब. नहीं, not about women empowerment, but it's true. In most of the cases, not all, but yeah, most of them. I think all. We'll have to say all. Because at the end, wherever this system is broken, no, this is my personal experience. I've not read it anywhere, but when I in whichever house the woman is a little subdued, that house is lost forever. वो बर्बाद है वो. That nothing happens there, and this is not a dharmic shiksha. This is a truth which I've myself observed and felt. So the reality is, so अभी मेरे साथ ये anger वाले part पे Darshika and Bishmiti have done a really great job by helping me out with this portion.
तो अपने को ये पता है कि अगर घर का छोटा सा टॉडलर संभालना है तो घर की मम्मी को एक्टिवेट कर दो। ऐसे ये ब्लू जो है ना, आपकी मम्मी है, ये घर का पूरा सिचुएशन संभाल लेंगी, बस इसको जान तो देनी पड़ेगी ना यार। तुम पता चले मम्मी को भूखा मार रहे हो, उसके बाद वो क्या करेगी? Until she is given power, until you give your cortex the power to think, I've given you the option to think. दर्शक, आप समझ में आ जाएगा ना क्या सोचना है। अभी आप मुझे समझ नहीं आता क्या सोचूं। It has to be, what does it have to be? It has to be what will be the consequences of my anger. Consequence. It will not happen. This fire, we have to stop this fire. Like this. This happens, things will go out of the way. You will not be able to control that. Consequences are catastrophic. इसने गुस्सा किया ना एक बार, आज जाके एक नोटपैड उठाना, एक पेज से ज्यादा का नुकसान हो चुका होगा गुस्सा आज तक। एक पन्ना भर जाएगा, कितना ही बड़ा पेपर हो रहा है, चार्ट पेपर लेके बैठ जाना, फॉन्ट तो बड़ा लिखना चार्ट पेपर पे, तो फिर भी you will have the realization that this emotion is actually destructive. नहीं कंट्रोल कर खुद का नुकसान होता है और किसी का नहीं होता। That's true. Anger is a punishment we give ourselves of something that other person has done. Yeah. Clear? कुछ और नहीं सोचने का इस बारे में। अपन गुस्से को खत्म कर चुके हैं यहाँ से। अगले पोर्शन की तरफ बढ़ने के लिए I think we are good to go. Right? Okay. Perfection. Thank you Darshika and Vishmeet for handing me out with this part of the session. And anybody else the session anger पे कोई question किसी का बचा हो तो अभी पूछते हैं उसे। अभी लेते हैं and then we'll move ahead. I think that will be the best way. बहुत बड़ा broken session नहीं है, we have very sorted kind of a session. More interaction less. गोपाल ने unmute किया, मुझे डर लग रहा है। क्या क्या भाई? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को एक बात पूछनी है, तो ये कह रहा है कि उस समय उस कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचो कि कैन यू अफोर्ड टू हैव दैट एंगर, लेकिन उस समय जो आपका मेंटल स्टेट है उस समय जरूरी ये भी तो नहीं है ना कि आप उस कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी सोच सको। कई बार ये कर रहा है ना, सीए फाइनल का पेपर देखा होगा कई बार, हमने तो वैसे ही बार देखा है, हमने तो इतनी बार देखा है कि उस पे एक किताब लिखेंगे ना तो 2 बार एडिट करने के बाद 500 पेज की बचेगी। भाई वो मत शुरू कर, यहाँ पे वो मत शुरू देख, it's a very long topic. हाँ, It's a very long topic. No, I'm not going to take the exact topic. उसके लिए तो ज्यादा पैसा लगेगा बस। At the end, गोपाल, बहुत सिंपल है। जब हम स्टार्ट करते हैं, कभी तूने ये सुना होगा ना, प्रैक्टिकल पेपर्स जो हमारे हैं, कुछ तो अपने को बोलते हैं कि जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना इजी हो जाएगा सॉल्व करना। एग्जैक्टली। ध्यान से समझियो। अब आपने एक क्वेश्चन को एक बार देखा, फिर दूसरी बार देखा, फिर तीसरी बार देखा, आप दाग लोगे। पहली बार में नहीं सॉल्यूशन आप ले पाते हो फर्स्ट टाइम में। बार बार उस चीज को प्रैक्टिस करने से क्या होता है, वो बैठे हुए लाइब्रेरी में बैठे हुए गलतियां कर लो जितनी करनी है, ताकि जब लाइव में जाओ ना तो वो प्रॉब्लम ना हो। अभी इसी पूरे सेशन में एक स्लाइड आएगी जहां पे तुम्हें समझ आ जाएगा कि एक ऐसी जगह भी होती है जहां पे अपने इमोशन को थोड़ा खुला छोड़ो और वहीं पे प्रैक्टिस करो इमोशंस को कंट्रोल करना। पहले यार नहीं, दुनिया में नहीं, but there is a place where you'll have to find a safe space for your emotions well someday. But अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कभी ये नहीं है कि ये तो मेरा स्पेस है, यहाँ तो मैं बाप का राज चलाऊंगा। That's not. Practice at your home so that you perform in the battle. Simple rule है। Practice at your war ground होता है पीछे, वहाँ प्रैक्टिस करो ताकि बैटल में अच्छा परफॉर्म कर सको। क्लियर है? ये धीरे धीरे आएगी चीज गोपाल, अभी नहीं आएगा। नहीं एग्जैक्टली। देख, I'll tell you what happened with me. जब भी मैं स्टार्ट किया था ना एंगर मैनेजमेंट, तो मुझे ऐसा होता था, गुस्सा आ गया, अब साला 5-7 दिन तक उस लड़ाई को चलाते रखो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिए मरे एग्जैक्टली फर्क नहीं। बट विद टाइम पहले मेरा गुस्सा ऐसा हुआ कि चल 2-4 घंटे में रियलाइजेशन आता था, फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि गुस्से के 2-4 मिनट 10-15 मिनट बाद रियलाइजेशन आने लग जाता है। एक पॉइंट ऐसा आता है गुस्सा करने से पहले ही रियलाइजेशन आता है, और अगर कभी आ भी जाए तो गुस्सा करते ही रियलाइजेशन आ जाता है। दैट्स अ गुड प्लेस। फिर इंसान है यार, क्या अपने आप को क्यों हंटर बजा रहा है अपने ऊपर? घोड़ा बहुत तेज भागता है, पता है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेस का घोड़ा तेज भागता है, हर घोड़ा तेज भागता है। कोई हंटर से भागता है तो कोई अपने आप प्यार से भागता है। प्यार से भाग, अपनी खुशी से भाग, ज्यादा तेज भागेगा। धीरे धीरे अपने आप को कंट्रोल कर, कोई हार्श मत हो अपने ऊपर लाइफ में ना, धीरे धीरे चीजें हो जाएंगी, धीरे धीरे आएगा कंट्रोल में। गुस्सा क्या, गुस्से का आप भी कंट्रोल होगा।
Okay, Kanika, you want to say something? आपने बार-बार yes नकुल, what if हम consequences सोच रहे हैं एंगर के टाइम और सामने वाला जिससे हमारी लड़ाई हो रही है वो consequences नहीं सोच रहा, तो कहीं ना कहीं हम provoke हो जाते हैं फिर बिल्कुल हम consequences भाड़ में गए और ठीक है भाई आ जाओ मैदान में। आई एग्री। देखो ऐसा होता है लाइफ में कई बार ना, हम लोग ऐसी पार्टी से डील कर रहे होते हैं कि आप दुनिया भर के कॉन्सिक्वेंसेस सोचते हो, सामने वाले को घंटा फर्क नहीं पड़ता कॉन्सिक्वेंसेस से, तुम जियो मरो कोई फर्क नहीं है, एग्जैक्टली तुम अपनी लाइफ के इंचार्ज हो, उसका तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। तुम अपने क्लोजेस्ट पर्सन, अपनी मम्मी से भी बात कर रहे हो, अपने फादर से भी बात कर रहे हो, इवन इफ दे आर नॉट रेडी टू कंट्रोल। यार एट द एंड पता है जब व्हेन रावण डाइड ना, व्हेन रावण ऑन हिज डेथ बेड, तो मंदोदरी वाज क्राइंग एंड सेइंग कि मुझे भी मार दो, राम जी से बोला मुझे भी मार दो। राम जी तो कुछ बोल नहीं सकते थे भाई, वो दुश्मन है, क्या दुश्मन की बीवी से बात करें। उस जमाने में तो कब का हो जाता था, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, सीता जी वैसे ही उनका बंदर बना देती, कोई फायदा था नहीं। एक्चुअल में सीता जी बहुत पावरफुल थी, राम जी इतने मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे, बहुत पावरफुल लेडी थी यार वो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, राम जी ने तो नहीं बोला, जामवंत जो होते थे ना, किंग ऑफ द बियर्स के जो किंग थे जामवंत, बताया कि व्यक्ति विशेष जो धरती पे आता है ना, उसका जुड़ा बहुत लोगों से होता है, बट एट द एंड अकेली जिंदगी है, आएगा अकेला, आया था अकेला। एक बार को ट्विंस हो तो मिलने का मौका अकेले मिल सकता है, लेकिन जाना बॉस अकेले एक दिन। तो आप कोशिश करो, अगर आपके लिए वो पर्सन इंपॉर्टेंट है तो उसे भी ये एडवाइसेस दो जो मैं आपको दे रहा हूँ, कोशिश करो संभालने की, बट एट द एंड अपने ब्रेन का रिस्पॉन्सिबल तो मैं खुद हूँ ना यार। सामने वाले का ब्रेन अगर नहीं भी कंट्रोल में आ रहा है, यू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, लास्ट ऑप्शन यही होता है। However important it is for you, get out of that situation, but yes, आप ये चीज कॉन्शियसली करो, बहुत सोच समझ। यार वो ऑप्शन तो आई गेस इज नॉट यू नो वायबल। मतलब आप फाइट से, अगर एक तरीके से वो फाइट सी हो गई है तो व्हाई वुड यू गो बैक? ओ पंजाबी वाला एटीट्यूड है तेरा, पहला नहीं फिर पीछे भाई, वो रहे तेरे नाल। भाई वो वाली बात नहीं है, लेकिन स्टिल अगर मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई कि सामने वाला सुन नहीं रहा है और आपको मतलब यू आर कंट्रोलिंग, लेकिन आप अपने आप को पीठ दिखा के तो नहीं भागोगे ना वहां। अब ये देखिए क्या पंजाबी वाला एटीट्यूड है, पीठ दिखा के हम भाग जा, आजा सामने तो एक नकुल हैपेंस अगर सामने वाला नकुल आई थिंक मेरे को लगता है कि एंगर इज रिलेटेड टू हाउ यू प्रैक्टिस योर लाइफ। आपका पास्ट कैसा रहा है, हाउ यू आर डूइंग इन प्रेजेंट, जैसे आप अपनी लाइफ को जीते हो उससे बहुत एंगर का I appreciate your inputs, but I'll tell you, people with the most sorted life will have breathtaking anger management issues, and people with a hell lot of trouble in their life, na, they don't give a shit about how angry they get. They never get angry. जैसे एक परसेप्शन बनी होती है कि जाट एंड गुजर्स के बारे में, अगर ये जाट गुजर है तो भाई गुस्सा तो हो गई है ना, तो ऐसा होता है। I'll tell you, वो कुछ नहीं है, वो आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस को ट्रेन कर दिया गया उस तरीके से, ठीक है। जैसे कि बीइंग पंजाबी है तो मतलब एक पंजाबी नॉनवेज नहीं खाता, हाय मेरे रब्बा, many of Punjabis don't eat non-veg. You didn't know you used to eat non-veg एक हफ्ता महीना भर पहले तक, अभी भी नहीं खाता होगा, पब्लिक में क्या बोलना बता दियो बाद में, ठीक है। तो इट्स सिंपल यार। अब गोपाल हमारा बिल्कुल ब्रह्मचारी आदमी है, शराब नहीं पीता, पीपल विल से पंजाबी नहीं है, ऐसा थोड़ी है गोपाल। सही बात है भाई, ये वाली वीडियो रिश्ते के लिए भेज दियो अपने, ठीक है। सो दैट्स द ट्रूथ, सिंपल है यार। नॉनवेज और वेज के बेसिस पे नकुल जहाँ रिश्ता होगा वो तो बेकार है ना, फिर वैसा रिश्ता ही क्यों करना? Obviously that's true, I mean that's one thing, but then I mean ये कुछ धारणाएं हैं, we are talking about धारणा। सुन भी देंगे, जैसे अभी जाट है गुजर है गुस्सा तो होगा ही, अब पंजाबी है तो फाइट तो करेगा ही, कीप काम नहीं होता हमारे अंदर, रौला तो पहना ही पहना, that's not true। हो जाता है यार, गुस्सा किसी भी बंदे को आ सकता है, एंड एक धारणा बनाने से क्या होता है ना, हमारी सबकॉन्शियस वैसे बिहेव करने लग जाती है। अगर मैं खुद को रोज बताऊंगा ना कि मैं बहुत शांत हूँ, दुनिया का सबसे गुस्सैल आदमी भी ना शांत हो जाऊंगा। अगर मैं खुद को ये बताऊं कि भाई मैं हरामी हूँ, मैं बुरा हूँ, 3, 4, 10 दिन, 15 दिन, 1 साल में बुरा हो जाएगा वो इंसान। That's how it works। सबकॉन्शियस को क्यों फिर हम लोग कहते हैं मेडिटेशन करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो चीज बार बार आपके सबकॉन्शियस में घुसेड़ी जाती है ना, वो होने लग जाती है। अब इतने सालों में बेचारा गोदी में नहीं आता। वो वीडियो देखिए बस्सी की किसी ने,
मैं हूँ जाट, हमें बोला स्ट्रॉन्ग। फिर क्या हुआ जब वैक्स डली स्विफ्ट डिजायर, वो स्विफ्ट डिजायर बन रही थी ना वापस। तो ऐसा हो जाता है कि आपको एक बात बताई जाती है, बीइंग अ पंजाबी पीपल से यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, वी हैव टू बी वेरी लार्ज इन साइज। अपन लोग बहुत बड़े बड़े, अबे मैंने 5-5 फुट के पंजाबी देखे हैं यार, अब मैं डाउट करूं उनकी ऑथेंटिसिटी पे? ऐसा नहीं होता। यू हैव योर यू नो अप्स एंड डाउन। बिस्मित ऐसे मत देख मुझे, समझ रहा हूं मैं, कुछ नहीं कहा मैंने, ठीक है? तो हेलो नकुल। हेलो नकुल, आशुतोष हियर। हाय सर। ये जो गुस्से वाली बात है ना, ये सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करती है और प्लेस के ऊपर भी डिपेंड करती है। जैसे यदि मेरे ऑफिस में मेरा कोई क्लाइंट आया और मेरा स्टाफ पूरा बैठा हुआ है, वो मेरे को यदि अनशन कुछ बोलेगा और मैं चुपचाप बैठा रहूं, तो ऐसा थोड़ी चल जाएगा। बिल्कुल सर। नहीं सर, मैं दो तरीके हैं। रिएक्ट तो होऊंगा, मैं रिएक्ट तो होऊंगा। अब वो रिएक्ट होने का जो भी स्केल है, वो स्केल पे मुझे कंट्रोल है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? और क्या मैं मेरे स्टाफ के सामने कोई मुझे गाली देगा तो वो मेरा ईगो हर्ट नहीं होगा? ये एक ईगो वाली बात भी है, और एक जो प्लेस वाली बात भी मैंने कही कि जितना हम कर रहे हैं, यदि कोई फाइट है तो हम कोई चुपचाप नहीं बैठेंगे। बिल्कुल सही है सर। सर मैं अब आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा एक शास्त्रिक एग्जांपल दे देता हूँ। महाभारत के युद्ध में ना भीष्म पितामह एक बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड इंसान थे। 160 साल का ब्रह्मचार्य शरीर लेके पहुंचे थे वो महाभारत के युद्ध में, एंड ही वाज स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर। उनको मारने के लिए शिखंडी का सहारा लिया गया था, अगर आपने स्टोरी सुनी है तो सर। हाँ, स्टोरी क्या, पूरी स्टोरी मालूम है। आप बोलो तो एक एक चीज का एपिसोड बता दूं मैं आपको। परफेक्ट सर, परफेक्ट। बहुत लंबी जमी, अपन ये जा सकते हैं लंबा खींचे बैठा के, वी हैव टॉपिक्स टू कवर। शिखंडी कौन था ये भी मैं बता सकता हूँ आपको। शिखंडी वाज देन बोर्न एज अ वुमन एंड देन टर्न इनटू अ मैन। सर अपन का यस, एक लॉजिक हाँ रखना। चलो ठीक है। भीष्म को गुस्सा नहीं, ही वाज अ वेरी कंट्रोल्ड पर्सन। दुनिया भर की गालियां जाती थी, दुनिया भर की बातें उन्हें भी कही जाती थी कि आप अपने पोतों को मार रहे हो, आप इसे मार रहे हो। He didn't used to get angry, and that is why he was a very controlled warrior. Hanuman was a very controlled warrior. या गुस्से में नहीं बट लड़ता, गरजते। वी आर नॉट भीष्म और हनुमान। We are not that person, but जितना हो सके उनकी तरफ तो बढ़ सकते हैं ना सर, because they were very controlled here. तो जब अब बताओ ऑफिस वाली सिचुएशन पे आ जाता हूँ मैं। सर मेरे ऑफिस में आके मेरा क्लाइंट मुझे अंशंट बोल रहा है, मेरे ऑफिस में सीसीटीवी है सर, फोन नंबर मेरे फोन पे स्पीड डायल पे आ सकता है। मैंने कुछ गलत नहीं बोला, 100 नंबर मिलाया, उस बंदे को इतना कुटवाया मैंने अंदर भेज के शांति से। मेरी एक तो इमेज बच गई that I'm a qualified chartered accountant running a very decent firm and I don't get angry. मेरे गार्ड्स ने धो दिया उसको बाहर ले जाके, सिचुएशन अलग अलग है ना। आप देखिए मेरे सर, मेरे एक अंकल है, वो पुलिस में है। एक टाइम आया मेरी बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी किसी से, मैं कहा मामा यार तू टेक केयर ऑफ दिस पर्सन, यू टेक केयर ऑफ मी आफ्टरवर्ड्स। ही सेड लिसन, टैक्स भरते हैं तेरे पापा, ये खाकी वर्दी पहना के तुम्हारे लिए हायर कर रखे तुम्हारे पैसे से, उनको लगाओ तुम क्यों करोगे? एंड दैट इज अ वेरी कंट्रोल्ड थॉट। अब मुझे तब समझ आया एसीपी की कुर्सी संभालने के लिए कितना शांत दिमाग चाहिए। सही, कंट्रोल्ड दिमाग से चलेंगे ना सर, एक्शन सही लेंगे हमेशा। अपने खिलाफ देखो, रिएक्ट तो करना है, वी कांट बी वेरी। आपको लाइफलेस होने को कौन कह रहा है? रिएक्ट करना है, अपने को सामने कामदाम दंड भेद लगा के पटकना है। डू इंपल्सिव रिएक्शंस नहीं देने लाइफ में, गुस्से में है ना सर। परफेक्ट कंट्रोल रिएक्शन। बिल्कुल, एक सोचा समझा साजिश, कोल्ड ब्लडेड मर्डर करना, वार्म ब्लडेड नहीं करना। ऐसा कि क्राइम पेट्रोल का एपिसोड भी सॉल्व ना हो पाए। सिंपल स्टोरी नहीं आनी चाहिए सर, क्राइम पेट्रोल में मर्डर करना कर दो। यस यस, वो देखना आपको कौन सा डिसीजन लेना है, ठीक है ना सर। परफेक्ट है। चलो अपन गुस्से पे अपन बहुत लंबी बात कर चुके हैं, आगे बढ़ने के लिए गुड टू गो है सब लोग। एक बार गुड टू गो दे दो यार, मैसेज दिखाओ, चैट बॉक्स तुम्हारा शांत पड़ा है बहुत। जीटीजी गुड टू गो, कम ऑन, गुड टू गो अपन। ऑलराइट, ready to move on to the next slide. Good to go, Kanika says good to go, Gopal says good to go. ठीक है। और गुस्से के साथ जो दो बंदे थे मेरे साथ, बिस्मित एंड द अदर गर्ल दर्शिका सिंगल, आप लोग एक बार यार आप लोग थम्स अप जरूर दे दो, बिकॉज़ आपने ये पूरा कराया ये वाला साइड मेरे साथ। परफेक्ट, शांतनु हैज गिवन मी अ थम्स अप। ओके परफेक्ट, अपन लोग आगे वाली स्लाइड पे मूव करते हैं अब। पारस गुस्सा शांत है ना, आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा किसी बात पे? आई वांट टू मेक श्योर यार। या आई एम कूल। कर सकते हैं यार, बच के रहना पड़ेगा। नहीं अभी शांति है, अभी शांति है, अभी शांति है। अब अपन आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट बात पे। सर आपको महाभारत का युद्ध बहुत पसंद है, देखिए अभी अपन
के युद्ध का मेन पार्ट भगवत गीता चलेंगे. द वर्ल्ड्स, I called this Yes. the Adi motivational lecture. The first Yes. motivational lecture of the world was श्रीमद् भागवत गीता. इससे बड़ा कोई मोटिवेशन दुनिया में है नहीं. बराबर. एक घुटनों पे बैठे सोल्जर से दुनिया की सबसे बड़ी वॉर जिताने वाले वो कृष्ण थे. उन्हें नाचना भी आता था and he was the strongest warrior on the battlefield as well. फिर भी Yes, yes. आइए समझते हैं. सबसे पहले the greatest lives are lived ordinarily. तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हम लाइफ देखते हैं ना, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो जैकमा हो, चाहे वो मार्क ज़करबर्ग, मार्क ज़ुकरबर्ग, रतन टाटा इज द नेक्स्ट. रतन टाटा तो बॉस, उनको तो नेक्स्ट हमारे बच्चों के बच्चे ना भगवान बताएंगे. आई वुड बी दैट पर्सन इज द नेक्स्ट लेवल ह्यूमन. उतना कंट्रोल दिमाग पे अगर हम ले आते हैं तो आई थिंक वी विल बी समवेयर वेयर ही इज. हम डोनेट, हम चैरिटी भी नहीं करेंगे, मुझसे आगे चले जाएंगे. वो चैरिटी बहुत करते हैं. तो कमिंग बैक टू द सिचुएशन, महाभारत के टाइम पे जब लड़ाई चल रही थी तो अर्जुन वांटेड टू नो दैट एट द एंड बार-बार वो, बिकॉज़ एकदम तो बिल्कुल गिर के नीचे बैठ गया घुटनों पे, एकदम युद्ध के लिए एक्साइटेड हुए तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए. हमारे भीमसेन जो हुआ करते थे वो इतने ज्यादा दिमाग से उद्दंड हुआ करते थे कि नारायण अस्त्र जो था, एक वेपन था जो नारायण का वेपन होता है, वो जितना उसके आगे गुस्सा करो ना वो उतना मारता है, और अगर हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ वो छोड़ देता है. वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वॉरियर वेपन है. भीम को समझाने के बाद भी वो नहीं मान रहा था कि नारायण अस्त्र से मान जाओ. What did he do? Control. Why were they not able to control their anger and agitation? Actually, chapter 2 यानी कि अध्याय 2 श्लोक 38, श्री कृष्ण ने एक बहुत सिंपल सी श्लोक में बोला, सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धात् युजस्व नैवं पाप व्याप्स्यसि. मतलब कि आप अगर एक युद्ध में जा रहे हैं ना, अब युद्ध हर चीज है सर लाइफ में. उस समय महाभारत के टाइम लड़ना जरूरी था. आज आप एग्जाम देने जा रहे हो तो युद्ध है, आज नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो युद्ध है. अरे भाड़ में क्या इंटरव्यू, अगर आप आज नौकरी पे जा भी रहे हो ना, आज डेली आपका युद्ध होता है. और प्रैक्टिसिंग जितने भी यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हमारा तो हर घंटे में नया युद्ध शुरू हो जाता है. नया क्लाइंट एक नया युद्ध है, नया डिपार्टमेंट का मेंबर नया युद्ध है हमारे लिए. तो हर युद्ध में जब आप जाते हो आपको जीत और हार को, यश और अपयश को, कीर्ति और गिरने वाली चीजों को, लाभ और हानि को एक साथ देखना पड़ेगा, समान भाव से देखना. कहते थे कृष्ण जी, जो सुख और दुख को समान भाव से देखे अर्जुन, वो व्यक्ति श्रेष्ठ है. अभी थोड़े दिन पहले मैं, एक बहुत बड़े एडवोकेट हैं दिल्ली के, राज सिंह निरंजन, इलेक्ट्रिसिटी लॉ में आई थिंक वो बहुत बड़ा नाम है. उन्होंने एक बात बोली, इसको चेंज कर दिया थोड़ा सा कृष्ण जी की बात को. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सुख और दुख को, जीत और हार को समान भाव से देखे वो व्यक्ति प्रोफेशनल है. आप प्रोफेशनल का मतलब ये नहीं है कि आपको इसी प्रोफेशन में रहना है. प्रोफेशनल का मतलब है आप कुछ भी करते हो यार. अगर आप एक हाउस होल्ड में काम करने वाली एक मदर भी है ना, मैं एक ही बात बोलूंगा कि आप एक प्रोफेशनल मदर बनिए, आप एक प्रोफेशनल हाउसवाइफ बनिए. कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, आप अपने काम को दिल और लगन से ऐसे निभाते हो कि कोई आप जैसा नहीं कर सकता. प्रोफेशनलिज्म. यप. तो उस केस में अभी क्या है, हमारे साथ एक प्रॉब्लम होती है. हम सुख में तो इतने खुश हो जाते हैं, नाचने लग जाते हैं, लाया लाया पैंट्स ऑन फायर, हम लोग इतनी तेजी से भागते हैं कि बेल्ट टूट के गिर जाती है. वो एक गाना भी है इसमें बहुत अच्छा सा कि मोहे आई न जग से लाज, में इतनी जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए. टू व्हिच माय मेल फ्रेंड सेड कि ये बहुत ज्यादा विमेन हो रहा है, अपने को क्या चाहिए. मैंने उनको गाना बदल के दिया, मोहे आई न जग से लाज, मैं इतनी जोर से नाचा आज के नाड़ा टूट गया. समथिंग आई हैड टू डू फॉर देम एज वेल. देखो मैं दोनों जेंडर्स को बराबर करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ. मैंने एक लाइन दे दी, यू नो, लाइक आई मीन ऑब्वियसली यार, जैसे तेरे गोरे गोरे गाल, तेरे लंबे लंबे बाल, हाय तेरा क्या कहना. आई मीन कोई लड़कों के लिए भी गाओ यार, तेरी छाती पे ये बाल बाल, तेरे मूंछे हैं कमाल, हो तेरा क्या कहना. समथिंग हैज टू कम फॉर अस. men have to be acknowledged, we are very less acknowledged. सर इस पे भी गुस्सा आता है मेरे को तो बहुत बार कि हमारी एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं है. होनी चाहिए ना. पता है कितनी मेहनत लगती है सब ग्रो करने में, बहुत ज्यादा बियर्डो लगता है अपना. 500 रुपए घंटे का खर्चा है इसका. एनीथिंग. द प्रॉब्लम इज कि जब खुशी होती है तो हमें आती नहीं जग से लाज, हम इतनी जोर से नाचते हैं घुंघरू नाड़े टूटने लग जाते हैं. हम लाइफ को एक्सट्रीम्स पे जीने लग जाते हैं उस टाइम. एंड ध्यान रखना, जो इंसान को आप जितना ज्यादा, पता है उन लोगों की क्या इमेज रह जाती है, लाइफ कैसी हो जाती है उन लोगों की. वो अपने लिए नहीं जीते, वो दुनिया के लिए जीते हैं. आई फील बैड फॉर दीज पीपल हु लिव ऑन एक्सट्रीम्स. जब बेचारे खुश होते हैं तो लोगों के लिए एक हंसी का, एक बात करने का टॉपिक बनते हैं.
जब दुखी होते हैं तो भी हंसी का और बात करने का टॉपिक बनते हैं। अपने अंदर तो वो जी ही नहीं रहे होते, अपने बारे में तो वो सोच ही नहीं रहे होते। जब खुश होते हैं तो मैं बहुत सिंपल सी बात बताऊं, शराब वराब पी लेंगे या फिर टेबल पे चढ़ के नाचने लग जाएंगे या गाड़ी की छत पे चढ़ के नाच रहे होंगे कहीं पे, होगा क्या? आपको क्या लगता है उनके साथ के लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं? उनको अंदर से होती है वो 5 मिनट की किक, घर जाके फिर वो डिप्रेस्ड होते हैं, यार हो गया दिन खत्म आज का। बट दुनिया के लिए वो इतना अच्छा टॉपिक बनते हैं, हाँ वो 15 दिन 15 साल तक 20 साल बाद भी उनसे मिलोगे ना, वो आपको वही दिन याद दिलाएंगे, देख तू उस दिन छत पे चढ़ के नाचा था, याद है तूने जब वो पीछे पहलवान के पीछे वाले ढाबे के टॉयलेट में उल्टियां मारी थी? दैट्स हाउ दे टॉक अबाउट इट। जब आप अपसेट होते हो तो भी आप एक्सट्रीम पे हो, आप रोते हो, बिलखते हो, चीजें तोड़ते हो, कुछ भी करते हो, एक्सट्रीम है, तो भी आप एक कॉन्वर्सेशन का टॉपिक ही बन पाते हो। बस एक्सट्रीम्स पे रहने से हमारे मन को कोई सुकून नहीं मिलता। मैं बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा हूँ यार, दिस इज अ वाटर बॉटल है, इसके लिए सबसे सेफ यही है कि ये आराम से रहे। अगर इसके ऊपर कैप नहीं है तो, कैप है तो ये कंट्रोल है इसका, दैट इज हमारे पेरेंट्स। जब तक पेरेंट्स सिर पे होते हैं ना इस तरीके से, तब तक आपका गुस्सा जायज है। जिस दिन ये सिर से उतर जाते हैं ना, उस दिन आपका गुस्सा आप ही के ऊपर आके पड़ता है, उस दिन आपकी सौरव आपके ऊपर, उस दिन आपकी खुशी की, आपकी वो सेलिब्रेशन आपके ऊपर है। ये कंट्रोल जब तक है तो आप उल्टे सीधे जैसे मर्जी नाच लो, कोई नहीं पूछ रहा आपको। आई एम गोना बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक बात मैं बहुत आराम से समझाऊंगा सब। ये बॉटल के लिए सेफ यही है, इसके अंदर का मटेरियल सेफली इसके अंदर पड़ा रहेगा अगर ये शांति से चलती रहेगी, ना ज्यादा लेफ्ट जाएगी ना ज्यादा राइट जाएगी। द मोमेंट इट स्टार्ट गोइंग टू मच लेफ्ट राइट ना, चाहे ज्यादा खुशी की तरफ गिर जाना, चाहे ज्यादा गम की तरफ गिर जाना, होना नुकसान ही है, छलक के बाहर चले जाओगे। अब एक चीज और समझाता हूं, यहाँ पे ये लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग का टाइम है। जो इंसान बहुत काम रहता है वो खुश रहता है, रीजन क्या है उसको बहुत लॉजिकल समझना। ये कृष्ण जी ने कह दिया तो ये नहीं कि हम मान लेंगे। एट द एंड हो सकता है कि हमारे सेशन में कुछ लोग एथीस्ट हों, कुछ लोग हमारे सेशन में मानते ही ना हो इन चीजों को, तो मैं उनके लिए भी एक लॉजिक दे देता हूँ इस बात को मानने का। अगर आप एग्जाम्पल लो, अगर आप शांत रहते हो, दिन अच्छा गया बुरा गया, आप नॉर्मल हो, ठीक है, नॉर्मल हो, लेकिन आप एक्साइटेड रहते हो। अब ना एक ध्यान रखना, दिन को ना 33% के 3 भागों में जीते हो। रात की बात नहीं कर रहा, रात में तो आप बहुत कुछ करते हो, स्टॉप स्माइलिंग यू मैन। दिन को आप 33 पार्ट्स में जीते, 33 के 3 पोर्शन में जीते हो। वो 1% जो होता है वो आपका वॉशरूम वगैरह में चला जाता है, ठीक है। वहां पे भी कुछ लोग ड्रामे मचाते हैं, वहां भी रोना हंसना चलता रहता है किसी किसी, बट 33 के 3 पोर्शन और 1% का आपका नेचर स्कॉल, तो 33% के 3 पोर्शन है। अब जो इंसान एक्सट्रीम्स पे जीता है वो जिस दिन खुश होता है ना उस दिन भी खुश नहीं होता। प्रॉब्लम क्या है? ग्लो ऑफ योर फेशियल, लड़कियों को देखो स्माइल चेहरे पे एकदम आई है, ग्लो ऑफ अ फेशियल इज टेम्पररी बट द वुंड्स लीव। खा रही हो? हाँ कुछ खा रही हो? अच्छा नहीं ओके, यू आर ईटिंग, नाइस नहीं, इट्स वेरी गाला टाइम है, बिल्कुल आराम से खाते पीते करिए सेशन आराम से। मेरे ही खाने में प्रॉब्लम है, सब बाकी सब तो आराम से पेट भर के बैठ सकते हैं, टेंशन फ्री, ठीक है। मैं आता हूं अपनी बात पे। तो उपटन का जो निखार है वो अस्थाई है, मगर जख्म अपने निशान छोड़ के जाते हैं। होता क्या है, हम जैसे कि, और खुशी और दुख लेफ्ट राइट ऊपर नीचे होता रहेगा, सेम चीज है। इस ये लाइफ में कभी चेंज नहीं होने वाला। कोई हैप्पीली एवर आफ्टर में बिलीव करता ना, वो मिथ होता है। जिंदगी में ये सपना देख के जिंदगी मत जीना कि लाइफ में कभी हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाए, कभी नहीं होने वाला। प्रॉब्लम्स आती जाती हैं। एंड आई हैव अ फेवरेट बुक दैट आई रीड प्रॉब्लम्स के ऊपर, ये रेकमेंडेड है, डू रीड दिस बुक। कोई पढ़ेगा इसका नाम? Subtle art of not giving a fuck. परफेक्ट। ये अब मैं बताता हूँ ना, मैं लाइफ का, मैं इतना अजीब से लाइफ को जी रहा हूँ अभी, मैं भी एक्सट्रीम्स पे जीता हूँ। एक तरफ वो पढ़ता हूँ और एक तरफ ये पढ़ता हूँ। The Alchemist. ये दोनों बुक्स बिल्कुल ऑपोजिट है, किसी ने पढ़ी होंगी तो समझ आ गया होगा। Yeah, I have read it. You read both the books? I have read Yeah. the first one. The Subtle Art of not giving something. Yeah. Yeah. Even we're not giving it, right? Are we? No, we're not giving it. Okay. तो लाइफ को ना एक मेलो पोर्शन पे जीना सिखा देती है आपको। Things like subtle art, things like patience, things like भगवत गीता जब आप पढ़ने लग जाते हो,
तो ये चीजें आपको लाइफ में एक सिरेनिटी प्रोवाइड करती हैं, आप शांति से जीना शुरू करते हो। होगा क्या, अब खुशी और दुख ये आते जाते रहेंगे। मैं ये कहना चाह रहा था, ये दोनों बुक्स में ना ये चीज समान है, दोनों बुक्स इस थ्योरी को मानती हैं कि खुशी और दुख तो आते रहेंगे, एक्सट्रीमली डिफरेंट, बट ये सबको पता है। वन डे यू आर हैप्पी, वन डे यू आर सैड। मैं एक नॉर्मल लाइफ लेके चलता हूँ, हैप्पी डे सैड डे, हैप्पी डे सैड डे, ऐसा होता नहीं है सैड सैड सैड, हैप्पी वाला तो पता ही नहीं चलता कहाँ गया, ठीक है। बट उसका रीजन ये है बिकॉज हम लोग बहुत हाई पे जीते हैं। नकुल वो आता है पूरे, नकुल वो पूरे दिन में एक बार ही आता है, बट सैड इतना ज्यादा होता है कि स्किप दैट मच। रीजन बता रहा हूँ, उसका यही रीजन है, उसका रीजन यही आने वाला है। एक्चुअली दिन ऐसे ही होते हैं, बेश एक दिन खुश होती है एक दिन दुखी होती है, बट वो दुखी क्यों रहती है बता देता हूँ। बिकॉज जिस दिन खुश होती है ना उस पर बुरे दिन का असर चल रहा होता है। पहला 30 कभी कभी ऐसा भी होता है, हैप्पी डेज जब चल रहे होते हैं तो हैप्पी डेज पे शक होता है कैसे चल रहे हैं। मुझे नहीं होता विश्वास हैप्पी डेज पे, मैं तो मानता हूँ मेरे है ही नहीं, ये किसी और की फैक्ट है। तो अभी शक होता है भाई, ये प्रॉब्लम यही है बिकॉज हम हाईज में जीते हैं। जिस दिन हम दुखी होते हैं ना बेटा, नेक्स्ट डे का पहला 33%, अब शनि की 7.5 जैसे पता है ना, वो ढैया 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 में चलती है। तो पहली ढैया होती है जब खुशी की ढैया चढ़ती है, तो हम जिंदगी खुशी दुख में बिता रहे होते हैं। भाई हमारे साथ कल इतना दुखी दिन था यार, कल मेरा दिन खराब। सुबह अगर दूध के साथ 4 बादाम मिले ना 5 की जगह, तो गम यही होता है शाम तक, तो शाम को डिनर में 4 रोटी छोड़ के बैठे रहोगे इस गम में कि सुबह 1 बादाम कम मिला था। मम्मी को पूछ रहे हैं 3 बच्चे ना घर में, 2 बच्चों को तो 5-5 मिले थे, मुझे 4 क्यों मिले? भाई बादाम छिलते हुए टूट गया 1 बादाम, तो मम्मी ने खा लिया, क्या हो गया? नहीं, बिकॉज वी आर लिविंग इन हाइज। जो पेन होता है ना उसका मेमोरी रहता है, वो नेक्स्ट डे तक रहता है, बिकॉज जख्म के निशान छूटते हैं। उपटन का जो निखार है वो अस्थायी है, बिकॉज वो ढैया चढ़ी, पहले तो पिछले दिन का दुख था, अब बीच में बहुत खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुशी हुई। गुलाबों का गुलदस्ता लेके कोई ऑफिस के नीचे खड़ा था, मुस्कान तो देखी तो, लेकिन उस टाइम पे भी ना, जैसे ये बहुत बड़ा नाइटमेयर भी हो सकता है, डिपेंड करता है लेके कौन खड़ा है। खड़ा है या खड़ी है यार सही बात है। तो सर वो फर्क हमारे लिए है सर, हमारे लिए कौन खड़ा हुआ आज तक, हो जाता है बट हमारे लिए नाइटमेयर ही होता है सर, दोनों साइड नाइटमेयर है हमारे लिए। इधर है एक जगह पे खुशी होती है, 4 जगह गम, 1 जगह खुशी होती है, यहाँ 5 जगह पे सर टेंशन है। जिस दिन खड़ी भी है तो परेशान हो जाना, आज कुछ होने वाला है बॉस, आज शाम को कटाई है पक्के वाली। ठीक है सर, आते हो तो सर यही हुआ, शाम को गुलदस्ता लेके कोई आ भी गया, अब वो गुलदस्ते वाले जब छोड़ के घर से जाएगा ना, अब तेरी आखिरी ढैया शुरू हो जाएगी, खुशी की आखिरी ढैया, तब तुझे ये दुख होगा कि यार वो चला क्यों गया, अच्छा चल रहा था, बिकॉज हम हाइज में जी रहे हैं। दुख का जो पेन होता है वो फील होता रहता है। अब सीधी बात है, सिंपल सी बात है, एक मसाज लेके देखना, उसके जाते ही ना वो उतरनी शुरू हो जाती है, लेकिन एक मुक्का मरवाना वहीं पे जहां मसाज ली थी, उसका दर्द नहीं जाता भाई, मुक्के का दर्द महसूस होता रहेगा 1 दिन बाद भी, 4 दिन बाद भी। That's how it works। आपको लाइफ को ना एक कामनेस के साथ, एक कंपोजनेस के साथ जीना पड़ता है। Only then you live the correct, the life will go in the correct direction। ठीक है? अभी अच्छा नकुल यहाँ पे कुछ पूछना चाहती हूँ। जैसे मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि आपके, मान लो आपको एक्सपेक्टेड था कि इस चीज के लिए आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, बट आपको अप्रिसिएशन नहीं मिला, या ऑफिस ने या आपके बॉस ने फेवर आपको करना चाहिए था बिकॉज यू वर करेक्ट, या यू गॉट द सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम, बट फेवर किसी और को मिलता है, तो वो जो एक डिप मोमेंट होता है पूरे दिन का, वो बचे हुए पूरे दिन रहता है उसका इम्पैक्ट, मतलब वो जाता नहीं। तो उस सिचुएशन में कैसे खुद को काम रखा जाए? कई बार लोगों के फेस पे दिखने लगता है वो, मतलब अगर आपके ऑफिस के बचे हुए जितने भी घंटे हैं वो आपके फेस पे दिखने लग जाएगा, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? मैं बताता हूँ, काम में जा रहे हैं, हम लड़ाई में जा रहे हैं, प्रॉब्लम होने के टाइम पे आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, बिकॉज अभी इंडिया चाइना का जो फेस ऑफ हुआ था बॉर्डर पे, जिसने उसकी स्टोरी पढ़ी हो, अब वो पता है इंडिया चाइना की बॉर्डर ट्रीटी है कि वहाँ पे राइफल यूज तो हो नहीं सकती। एग्जैक्टली। ठीक है, उस ट्रीटी की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है कि हमें ना गन्स जो लेनी होती है, गन जनरली ऐसे रखी जाती है कि उसका जो शूटिंग एरिया होता है वो ऊपर की साइड होता है, ताकि फटाफट लिया शूट कर। बट इंडिया चाइना बॉर्डर पे गन को वो उल्टा टांगते हैं एकदम शूटिंग ना हो सके, वहाँ ट्रीटी इंटरनेशनल लेवल की है।
अब चाइनीज वॉरियर जब आए ना सामने से, कांटों वाले डंडे लेके आए थे इस पर, एंड दे कॉज्ड कैजुअलिटीज ऑफ 20 men। एंड आपको मैं एक बात बताऊं, एक इंडियन सोल्जर जो क्रिएट होता है उसकी कॉस्ट और उसकी क्वालिटी और उसका मेटल 10 चाइनीज सोल्जर्स से ज्यादा होता है। चाइना के सोल्जर्स चाइनीज कंट्री के नहीं है, वो चाइनीज गवर्नमेंट के, कम्युनिस्ट पार्टी के सोल्जर्स हैं। तो हमारा एक का नुकसान ना उनके 10 से ज्यादा है। तो ये बात के लिए मुझे तो कोई खुशी हुई नहीं कि उनके 40 गए, अब उनके 400 भी चले जाते तो हमारे 4 से ज्यादा थे। हमारे 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे फौजी बहुत मुश्किल है। और इंडिया की आर्मी एक दुनिया की लौती आर्मी है जो वॉलंटरली आर्मी में आती है। नो वन फोर्स हिम, नो वन फोर्स। ठीक है, तो ध्यान से समझते हैं। अब वो लोग वहां गए सुरभि लड़ाई में, उनके पास डंडे थे नहीं, अगर डंडे होते तो ही तो जीतते। तो आई थिंक पहला अग्रीमेंट मैंने आपका ले लिया यहाँ पहले उस डिप मोमेंट के आने से। डिप मोमेंट के होने के बाद तो इसको मरहम लगाया जा सकता है, जख्म तो हो जाएगा तब तक। आंसर आपकी स्क्रीन पे है। सुख दुखा समय कृत्वा लाभ लाभो जया जसो ततो युद्धाद युजस्वो नैव पापो। आप जब एक जंग में जाएं तो हार और जीत को, सुख और दुख को, रिवॉर्ड को, क्रिटिसिज्म को एक नजर से देखते हुए जाएं। मैंने जैसे करा है तो मुझे ये समझना है एक्सपेक्टेशन होगी हैप्पीनेस की, फिर वहां पे आपका नाम सुरभि है, आपका नाम राधा नहीं है, या आपका नाम रुक्मणी नहीं है, आप नहीं उस लेवल पे जा पाओगे कि बिल्कुल ही एक्सपेक्टेशन छूट जाए। बट कोशिश करो जितना रुक्मणी और राधा की तरफ बढ़ा जा सके, कि एक्सपेक्टेशंस के बिना आप आगे बढ़ते हो, लाइफ कम एक्सपेक्टेशंस के साथ बढ़ते हो। तो जब ऑब्वियसली बॉस आपको फेवर करेंगे तो खुशी नहीं होगी, बट खुशी का तो इम्पैक्ट शायद पूरा दिन रहता भी नहीं, लेकिन दुख का तो रहता। पहले से ही शेयर करके चलो। दूसरी चीज, दूसरा इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, कि अगर कुछ हो भी रहा है, मान लीजिए ऐसा कुछ हो भी जाता है और आप प्रिपेयर थे, किसी किसी चीज की बहुत एक्साइटमेंट होती है, किसी किसी चीज की बहुत इच्छा होती है लाइफ में, उस टाइम पे आपको क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है। इवन देन व्हेन इट इज डिप्ड, आप तब मैं ये कहूंगा कि हाईएस्ट पे जीने वाले लोग रोते हैं तो दूसरों के लिए, हंसते हैं तो दूसरों के लिए। जब रोते हैं तो कोई और हंसता है, जब हंसते हैं तो भी कोई और उन पे हंसता है। बट दूसरों के लिए जीना उसे नहीं कहते। दूसरों के लिए जीना मतलब, अगर मेरी लाइफ में कोई दुख हो भी गया सुबह से शाम तक, आई मेक श्योर कि अगर मैं पूरा दिन अपसेट रह गया तो मेरे अपने को ये कैसे इफेक्ट करे। हाउ वुड माय पीपल फील अबाउट मी नॉट बीइंग हैप्पी टिल द एंड ऑफ द डे? आई विल पुट ऑन अ स्माइल फॉर देम, आई विल बी हैप्पी फॉर देम फॉर हाउ दे लुक एट मी। दैट्स लिविंग फॉर अदर्स। मजाक का पात्र बनना दूसरों के लिए जीना नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट करना और अपने मूड को ठीक करना और दोबारा स्माइल करके आना। एक एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल है और रियलिस्टिक है। सबकी मदर्स घर में जब होंगी, बीमार होते देखा होगा अपनी मम्मी को सबने। हमारे बीमार होने में और अपनी मम्मी के बीमार होने में जमीन आसमान का अंतर है। हम बीमार होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, काम नहीं करते, दूसरा कर रहा हो उसे करने नहीं देते। पर कभी एक मदर को बीमार होते देख लोगे ना, लाइफ के सारे लेसन मिलते हैं, उसको दर्द नहीं होता। अगर बच्चा भूखा है, उसका पोता नाती कोई भूखा है, वो उठ के किचन में जाके खाना बना देगी। अगर उसका बच्चा गंदे में लेटा है तो वो उठ के चादर बदल देगी। तो कितनी बीमार है यार, डीलिंग विद माइग्रेन, शी शुड बी डीलिंग विद कैंसर, शी नॉट देयर। दैट्स लिविंग फॉर अदर्स। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक माई बन जाओ, तो वो बनना भी आसान नहीं है, वो बनना भी आसान नहीं है। मदर फॉर योर ओन चाइल्ड तो सब होते हैं, लेकिन अपने आसपास सबके लिए एक माँ की जिंदगी जीना वो कोई कोई विरला पैदा होता है। अगर आपके घर में कोई ऐसा है ना, तो आज जाके उसको मत्था टेक देना, क्योंकि मदर फॉर वन और टू चिल्ड्रन तो सब होती हैं, बट जो पूरे पूरे घर की मदर बन जाती है ना, वो कोई कोई होती है। इवन इन टुडेज वर्ल्ड, इवन इन ब्रेस्टफीडिंग वर्ल्ड, रामायण के टाइम पे भी केकसी वाज नॉट अ मदर फॉर ऑल। केकई वाज नॉट अ मदर फॉर ऑल, बट केकसी वाज अ मदर फॉर ऑल। तो उस, अब मां नहीं बन सकते, लेकिन उसके जैसा जीवन तो जीने की कोशिश कर सकते हो ना। Even if it's something going wrong with you, she'll keep this hair and she'll go in and fight for the children. Be happy with the other person. Smile, put on a smile. मैं घर का काम करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं आप किसी की चादर बदलने को नहीं कह रहा हूँ, बट एक स्माइल रख सकते हो और अपने दिल को शांत कर सकते हो। नहीं, मेरे अपनों को दुख होगा अगर मैं यहाँ से और थोड़ी देर भी दुखी रहा तो। That's all I can say for that. Does that solution work for you? Yeah, thank you. Okay. I think we are good to move to the next slide. यहाँ से? Okay. Yes. true. Perfect. Okay. ये बोनस है।
हम बोनस मूवमेंट पे आ गए हैं। एक छोटी सी चीज है, सबने रेस्टोरेंट्स में खाना खाया, कैफेज में खाना खाया। विश्वमीत के चेहरे में तो मुंह में पानी आ रहा है, वो पेस्ट्री खा नहीं सकते, दे नहीं रहा मैं किसी को वो पेस्ट्री। ये ऐसा नहीं है। हालत देगा, सबको दिख रही है स्क्रीन पे, कैमरा ऑन। ओके, व्हाटएवर, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आपने देखा होगा कि वो ऐसा होता है, हमारे घर के पास ना एक बहुत पॉपुलर जगह है, जो लोग बाहर से देख रहे हैं उनके लिए बताता हूँ, गाजियाबाद वाले तो समझ सकते हैं, आरडीसी का अपना वो जो वॉर मॉल है, उसके सामने रेस्टोरेंट्स खुले थे बहुत अच्छे अच्छे। मुझे बहुत टाइम बाद पता चला कि वो लोग खाना ना सामने वाली चाइनीज वैन से लाते थे, सारा चाइनीज सामने वैन से आता था उनका, और मेरे साथ भी वो लोग स्वाद ले लेके खा रहे, भाई इसका फूड, भाई इसका फूड। आपकी सराउंडिंग से आपकी चीजों का फर्क पड़ जाता है, टेस्ट बदल सकता है सराउंडिंग से। आपकी जो जगह है ना, वो आपकी पावर, जो आपका एसेंस है उसे ही बदल देता है। आपकी स्मेल, आपका फूड का जो स्मेल है या टेस्ट है, वो उसकी ऐसी जब आप काम करते हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर अब ये नहीं कह रहा कि मैं हर कोई एक जैसा हो जाऊं, मे बी अगर मैं अपने कमरे में एक माइक्रोफोन रखता हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये देखते हैं, I'll show you something, ठीक है, सबको पता है ट्राइपॉड है। अब बाकी स्पेस के कमरे में ट्राइपॉड उन्हें कोई खुशी नहीं देने वाली, बट मेरे को तो एनर्जी मिलती है इससे, ठीक है, बिकॉज दिस somehow serves my purpose. The room of a speaker, it's a room of somebody who works on videos. So why wouldn't I be happy to be on this? I would feel energetic because of this. ऐसी तो आपका दो चीजें हैं, एक आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जो आप करते हो, जो पर्सनल लाइफ में करते हो, उससे रिलेटेड चीजों को थोड़ा सजा के अपने कमरे में रखो, वैसा बनाओ अपने माहौल को, अपनी पैकेजिंग को वैसा करो जैसे आप प्रोडक्ट हो। अब टूथपेस्ट को अगर मैं डिब्बे में डाल के दूं तो कितने लोगों से यूज कर पाएंगे, कितने लोगों को टूथपेस्ट अच्छा लगेगा, भले वो कौन सा, वो टूथपेस्ट कौन सा है, क्लोजअप, पास आओ, मतलब एड अच्छी लगती है मुझे तो उनकी, बाकी मुझे आज तक समझ तो नहीं आया वो टूथपेस्ट में क्या काम पास आने का था। तो ठीक है यार, मैंने क्लोजअप कर करके, मतलब सच्ची बता रहा हूँ, मुझे 6 साल हो गए क्लोजअप करते करते, भाई मेरे दांत घिस गए, मैं 7 बार क्लोजअप करता था एक दिन में, कोई साला पास नहीं आया, मच्छर आ जाता था मुंह के अंदर सुन के, ऐसे लगता ये जिंदगी का एक बहुत मोमेंट था यार। एड्स हमें भ्रमित करती है, बट अगेन कैसे पैकेजिंग में रख के आपको बेचा जा रहा है उससे फर्क पड़ता है ना, उसकी क्वालिटी में फर्क पड़ता है। ऐसे ही खाना जब एक अच्छे रेस्टोरेंट में टेस्टी हो जाता है, वही वैन का खाना, वही टूथपेस्ट उसके पैकेजिंग की वजह से ज्यादा यूजफुल हो जाता है, ठीक है ना। तो व्हाई कांट वी पीपल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि हमें भी ऐसे पैकेजेस में रहना पड़ेगा जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। आइडियाज, आर वी ऑल इन? यस, समझ में, ये बोनस टिप था, इसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बार बार एक्सप्लेन करूं, बिकॉज़ ये बहुत सिंपल बोनस टिप है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सेड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड अंडरस्टूड है, मुझे ऐसा बट अगर कोई अभी यहाँ पे है जो कि हमें बताना चाहिए कि वो कैसे अपनी सराउंडिंग में क्या ऐड या लेस कर सकता है, आई थिंक आई विल टेक अ काइंड ऑफ एन अटेंडेंस हियर। I'll ask you guys, like, what is the change that you can bring to your room or your workplace? अब क्या चेंज करते हो, मैं ऊपर से नाम लेना स्टार्ट करूंगा and I'll ask you guys कि what exactly is the change you think you can do, नया कुछ, पुराना मत बताना। मेरे कमरे में ऑलरेडी कैलकुलेटर रखा रहता है, बहुत सफाई से, इसलिए लड़कियों से बात कर रहा हूँ, हमारे कमरे में सब कुछ होगा, हमें नया चाहिए, हमारी ईगो सेटिस्फाई करो, मैं स्पीक करूं, मेरी ईगो सेटिस्फाई करो, ठीक है, डन। पारस, one new thing that you would have at your workplace or at your room? I don't think I need to change things, but मैं अपनी आदत बदलना चाहता हूँ, मतलब सेल्फ सफिशिएंट बन जाऊँ, मतलब मैं कि अपनी चीजें खुद करूँ सारी, ताकि उससे क्या होता है, मेरे को ऐसा लगता है कि पॉजिटिविटी आती है उससे। बिल्कुल परफेक्ट है। अपना शुरू से लेकर, और थोड़ा सा सोशल मीडिया कम करूँ उससे, आजकल क्योंकि बहुत नेगेटिविटी हो रहा है, ह्यूमन माइंड जो है वो मतलब स्लेव बन चुका है सेलफोन का, तो जितना वो मैं अवॉइड कर सकूं उतना ज्यादा बेटर। परफेक्ट। आशुतोष जी सर, क्या जी, हाँ जी, एक छोटा सा चेंज जो अभी आपको लगता है आपके रूम या आपके ऑफिस के टेबल पे जरूरी है, फिर मैं आपको अपने ऑफिस के टेबल की एक बहुत पावरफुल चीज दिखाऊंगा, मेरी आधी एनर्जी उससे आती है, छोटी सी है। अच्छा, नहीं, एक्चुअली मुझे पुराने गाने बहुत पसंद है,
जो कि मैं हमेशा घर पे आने के बाद ही सुनता हूँ या गाता भी हूँ। बहुत तो मेरे मूड जब स्विंग काफी होने लगे तो उस समय मैंने कुछ महीनों पहले सोचा कि क्यों ना मैं अपने चेम्बर में एक ऐसी चीज लगाऊं कि यदि मेरा मूड खराब है तो मैं उस गाने को ऑन कर दूं। बढ़िया। कारवा लगाया फिर आपने? है जी? कारवा लगाया? कारवा एक बहुत पॉपुलर आजकल। कार वाला का है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। स्टार मेकर, यू वुड हर्ड स्टार मेकर आल्सो, उसका भी मैं एक मेंबर हूँ। ओके, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। थोड़ी सी आपकी आवाज भी, अगर आप गाते हैं तो थोड़ी सी आवाज भी सुन लेंगे आपके 5 मिनट में एक बार, ये इसके बाद, इफ यू डोंट माइंड, बस ओनली देन। आप बिस्मित, बताएंगे जब। पक्का पक्का सर, अगर हमारे पास टाइम आता है बिल्कुल अपन करेंगे उस चीज को ना। बिस्मित, एनी चेंज टू योर रूम? Yeah, I think so. The off-season indoor plants, actually. इंडोर प्लांट्स? Because I think today's Corona thing, I think off-season plants and indoor plants good for health or for the mood also. Perfect. Actually, you know what? The name of the virus is coronavirus. पंजाबियों का कोरोना है, हमारे यहाँ कोरोना आया ही नहीं कभी। हमारे यहाँ कोरोना आया है, हमारे यहाँ जिस लोग कोरोना, मैं family always check कोरोना करूँगा। भाई, मतलब आलू के पराठे हर जगह मोबाइल में उसमें वो गाना निकाल। Galaxy A5 2017, यार फोन की परचेज डेट भी लिखी है बंदे ने, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ना करो। चल, go ahead यार। One change that you're going to bring into your surroundings or your office. चेंज मैं ऑलरेडी ले आई थी कुछ मंथ पहले, तो शेयर करना चाहूंगी। मेरे को भूलने की बहुत ज्यादा आदत है, कुछ भी भूल जाती हूँ, चाहे वो कितना ही इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। So I purchased a board pen for my room and with a very bright color. तो एक तो वो मुझे वैसे इतनी एनर्जी देता है कि उसको देख के मुझे बहुत, मतलब बेसिकली मुझे एक्साइटमेंट रहती है, मुझे उसको कुछ लिखना है आज सुबह। प्यार का सागर है। तो वो जो लिखने की मुझे एक्साइटमेंट है, वो अपने आप में मुझे ऐसी चीजें याद रखने पे मजबूर कर देती है कि मुझे रात तक याद रहता है, अच्छा ओके दिस इज समथिंग आई हैव टू डू। पारसानी gives a thumbs up to that choice. स्टोरी हो सकता है वो, कभी भी ध्यान रखना, पारसानी का thumbs up आ चुका है उस पे। हाँ, पारसानी रहते भी पास नहीं है। Okay, moving on. Galaxy A5 2017. कराओके। Let's have Gopal. Gopal, अपना changes. Friends के पोस्टर के अलावा कुछ? फ्रेंड्स के पोस्टर के अलावा क्या लगाएंगे यार? आई वुड गो विद यू नो जो बिश्मीत ने कहा, आई गेस इंडोर प्लांट्स। एंड वन मोर थिंग जो मेरे को लगता है वो है कि मेरे को थोड़ा सा अपने जो रूम है उसमें लाइटनिंग की थोड़ी सी इश्यूज हैं स्टडी टेबल के लिए, तो आई विल गेट अ लाइट लैम्प। प्लेजर टू नो। नाइस वन गोपाल, नाइस चॉइस। गोपू के बाद आपके पास है अश्विन। अश्विन, यू वर देयर? इतना शांत इंसान तो नहीं है अश्विन। ऐसा कराओके या गाण्याचं? हेलो नकुल, मागे जाऊन करावं लागेल। अश्विन, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू ब्रदर? लॉन्ग टाइम यार। लॉन्ग टाइम। वीडियो यार मैं तो गुड फेस, हमारी फीमेल ऑडियंस फॉर द सेक ऑफ वुमेन इन द सेशन। देख, लोगों ने कैमरा पकड़ के यार वीडियो नहीं, यार वीडियो में अभी नहीं दिखा पाऊंगा, एक्चुअली मैं बाहर आया हुआ हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो मैं आपका क्वेश्चन का आंसर जरूर करता हूँ कि वर्क प्लेस पे क्या लगाना। ये एक्चुअली मैंने रिसेंटली सोचा भी था कि क्या लगाना है। एक्चुअली तुम्हें पता ही है कि थोड़ा स्मोकिंग का मेरा इशू है। परफेक्टली ट्रू। तो इशू क्या है? तो हैबिट है, बोलते इशू क्या है? हाँ, हैबिट है, तो मैं काफी टाइम से सोच रहा हूँ छोड़ने के लिए। तो आई एम थिंकिंग कि एक सोच ना रह जाए कहीं। हाँ, कि सोच ना रह जाए, उसके लिए तो एक कैलेंडर टाइप आता है कि उसमें हम वी कैन फ्लिप 1 2 days 3 days 5 days 6 days। तो जो भी होगा मैं उसको कैरी कर रखूंगा अपने वर्क प्लेस पे, रूम में, जैसे मुझे पता रहे कि भाई कितने दिन मैंने क्विट हो चुके हैं, कितने दिन छोड़ी है। But then you talk to me about it. You should never calculate it. I don't believe in calculation because that gives you a little booking. Okay. Leave and forget. I'll talk to you about it later on a personal call. That's not. मतलब मेरे साथ it didn't work. क्योंकि मैंने count किया. Once when I did it, I stopped counting. That works very well. That does wonders. Yeah, for some time. Yeah, you can. Perfect. Perfect. चलो, let's have Harshita. Ashika, you have to tell me the thing that you
in your room. Oh, okay. Sorry. I just missed you called out my name. Ashwin ने ले गया सारी चीजें. ये चाहना है. You can do anything to it. Happens. No, actually, when you asked this question, तो मेरे दिमाग में सिर्फ plants आया because that is one thing वो देख के थोड़ा शांति मिलती है. आए मेरे माली सारे के सारे इतने सारे. पर लगाए माली नहीं, माली तो हम है नहीं क्योंकि हमें आलस आता है उसको पानी देना पड़ता है इसलिए अभी तक लगाया नहीं है. फैक्ट है. अपने कितने और पौधे कौन लेके आ रहा है? एक तो गोपाल पौधे ला रहा है, वो किसी और फ्लावर्स का सीक्रेट. नहीं, एक्चुअली मेरे पास है, मेरे को रूम में रखना है. मैंने ड्यूरिंग ये अभी कोविड मैंने बना लिए थे 2-3 प्लांट्स. बस मेरे को अब वो रूम में शिफ्ट करने हैं ना डे और सो. बना लिए थे प्लांट्स? हाँ, मतलब वो ग्रोथ कर ली थी उनकी. क्या बात है, पौधे उगा रहा है. I'll show you someday in a day or so. Okay. Definitely, yeah. This is Paras, we're gonna get on a video call with them, all of us. Then we're gonna see his पौधे. गोपाल की खेती, we're gonna do the session गोपाल की खेती. Done. पंजाबी है खेती तो करने के. चलो, moving on. Kanika. Yes. Maybe air purifier. It's not because my room is smelly, but I'm very fond of good smell and all. So fragrance refreshes my mood. So yes, air purifier. बहुत बड़े air purifier. That makes a sound like. I mean, I find air purifier very interesting. I'm gonna bring. Thank you. Yeah, perfect. Thanks. I would love to see that, and make sure the air purifier actually goes with the mood of the room. That's all I'm going to say. Maybe it's sound and as well as it's lit. So yeah, that's what I'm going to say. We have the last one is Shantanu Rana. Just do during the session, Shantanu. Happy to see you. Oh, question to the Shantanu today. Maybe some internet issues. Somebody is on your video sometimes, because the net bandwidth goes away. Okay, moving on. That's all we've done so far, and I'm very happy with the session. It's going pretty interactive. Nakul, I think there is some audio issue. Okay. अभी आवाज ठीक है? Better. ठीक है, done है. Okay. So a lot of things that can give you strength inside a room, but I always have two things on the table, and I love to keep them up. One is the face of an elephant, Ganpati Bappa. I have them on my table for sort of a strength. And one is a lion. He opened his mouth for the fact. I imagine करता हूँ कि मुझसे बदतमीजी करेगा तो खा जाएगा. मैं यही imagine करता हूँ कि खा जाएगा. That's how I live my life. And that's just keeping myself out. So yeah, I mean, there's a lot of ways you can choose to give pleasure to yourself. I find myself somebody to, I think Shantanu has joined. Shantanu, आपको भी question iPhone से somebody has joined. You two can also come in and answer the question. Hello. Anji. Hello. Good evening, sir. Good evening. सर मैं ये चाहूँगा कि मैं मेरे जो आइडल हैं उनकी फोटो किसी ऐसी जगह सेव करूँ जिससे मुझे मतलब रेगुलर बेसिस पे मतलब पॉजिटिविटी मिलती रहे और एक तरीके से मैं मतलब पूरी तरीके से डिवोटेड रहूँ. And आपके आइडल कौन है? If you don't mind me asking the question, only at your convenience. Hello, Shantanu ji. Am I audible? Nakul, audio problem है शायद. Okay, no problem. हाँ, the voice is. Now we are better. Yes. Yeah. Yes. Perfectly all right. That's what happens when there's audio problem. Zoom says, "I'm going back. Ask me again."
Okay, moving on to the final portions. I think this is the bonus. I would want any one of you to read the screen. All the learnings you've done, this is the most important one. You have a bunch of people. मुंह में नहीं पढ़ना, कोई volunteer करो पूरा पढ़ने के लिए, सबको सुनाई देना चाहिए. Okay, ensure you have a bunch of people around you who love you no matter what, even if the sky was falling down. And that's the biggest truth. You can control your emotions. You can be mentally the toughest human being in the world, but you'll always need a family to come home to. I being a Capricorn, the most practical sign of the zodiac, and I'm actually a typical Capricorn. You can ask the people who are closest to me. And I'm not just a Capricorn for the world. I'm actually a typical Capricorn. I'm very practical, but at the end of the day, you know, when I have to very ambitious. Thank you so much. Yeah, I hope that's a positive, ambitious. Yeah, but I'm gonna say, when I am extremely tired, when I come back home, when I need a place to lie down, when I need some people to celebrate my day with, be very nicely, I don't want to do anything sometimes. Sometimes I want to be a baby as well. I don't want to be someone too smart or too intelligent. It just has to be a very light day. So yeah, I'm just gonna say, जैसे गोपाल मैंने देखो बोला, with these people, they're gonna understand your bad side. Don't make them suffer for understanding your bad side. Just try and be nice to them as well. Start improving around them, and make sure your home is filled with smiles. Laughter थोड़ा dangerous है, because laughter होगा तो रोना भी बहुत दूर से आएगा. Exactly. A gentle smile around you. That's how you're gonna have success in your life. I think family and home. My code is family. You can have any code. Most practical Capricorns also go back home and cry with their favorites. So yeah, that's exactly the Mula mantra for all the session. Now I'm gonna the participants. I have a small, tiny chotu chutku surprise for all of you. I will share the e-certificates with you guys, and we have e-certificates for the participants. I hope you can see them on your screen. Just the people who were participating. Ashutosh did join in the session, but we did not have them. See, Ashwin Gupta, we have the certificate of participation for you. अपने जहाँ पे बैठो वहाँ पे ऐसे करके clap करो सबके लिए. Nice. My brother is clapping in the other room. Come on, guys. You guys can clap at least. Your clapping will be heard here. Okay. Very nice, Ashwin. Thank you for participating. And moving on, we have Bishmeet. Thank you so much for being a participant. And here's your My pleasure. It will be mailed to you. And okay, Darshika ma'am, here's your certificate. And last moment certificate, my last certificate tha. We have a special respect for my certificates team. They've worked really hard on this, and these all are signed certificates. You can use them for your or other places as well. And we did not have some participants. Krithi Arora was a part of the session initially, but somehow she went away, and that's a participation. And here's a special certificate for being a part of the team and helping me out. The beautiful slides that you were seeing were supported and cooperated by CS Surabhi Mehta. A huge round of applause for her. Thank you so much. We appreciate your participation and contribution. Thank you. Thank you. Moving on, we did not have a few people. Okay. Gopal. Yes. I'm sorry for making your certificate with the name of Gopal Mehrotra. I know you don't like it. The certificates have to be in the name of a Chan man. But Nakul is not there, I think. Nakul is always around, bro. Nakul is always around. हवाएं दिखती नहीं है, हमेशा तुम्हारे आसपास है. ये नकुल अपने दिखने में ही वाले स्टाइल से ही बोला है बिल्कुल. Baba is always there. Baba is always there, right? Guys, these certificates are made by Aurora's Canvas, and I'm going to share the rest of them. Gopal, I'm sorry, the certificate is not under the name of Chan man. I'm going to make that certificate when I get home. And next time we meet. Kanika, here's your certificate. Thank you for participating. It was really nice to have you aboard. We couldn't see your video, but yeah, your voice participation was much appreciated. And there's a special regard of Kanika. I think the post that you posted on LinkedIn, we used that post ourselves. We loved your writing skills. I want to especially regard your writing skills. It was amazing. I am a professional. Thank you so much. Writer, and I was impressed. What a post that was. Thank you so much. Thank you. Yeah. Moving on. She was a part of the session initially, and we missed out.
these certificates can be collected on the behalf of, we're going to mail them directly. And Parasani, thank you for managing the entire session so far with me. And he co-hosted the session, and after entries and exits, he was managing and making sure the session was conducted properly. Shantanu, I hope she's still on the stream. Shantanu, are you still there? Yes, Shantanu is here. Shantanu, can you please switch on your audio? Thank you so much for your participation. Thank you, sir. Thank you. Okay, moving on. Then we did not have a few people, and that's it, I guess. Sabke certificates we have had. Ashutosh sir ka certificate we are still missing. Yeah. Ashutosh sir, I am this to my team. I'm so sorry. ये तो रहा sir. आया था आपका certificate सबसे पहला आपके आया था. I think we missed that at that time. That's your full name, right, sir? My name. Ashutosh. So Ashutosh Gokhale. Yeah, corrected. Sir, it's going to be C. Ashutosh Gokhale, right? Yeah. We have this corrected, and when we mail it to you, it will be a perfectly correct certificate. Thank you for your participation. And now I will use the last 5 minutes of the session in the way that I love to use it. अब थोड़ी मेरी भी चलेगी. बहुत सुन लिया मुझे. I want to listen to you guys now. I want you to be part of the session, and let's have a small feedback, a kind of if you want to call it, it's going to be a kind of a synopsis. You guys you can record synopsis and send it to my WhatsApp as well. I love to hear them. 30 seconds, 1 minute, whatever you want. But one by one, I think let's make this voluntary. Whosoever wants to speak first can speak about the session. How was your experience today? Last 5 minutes for you. And Ashutosh ji, जब आप अपना बताएंगे तो आप गाना भी सुनाएंगे हम सबको. ठीक है सर? तो मैं लास्ट में बताऊंगा. Okay sir, done है सर. नकुल सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी. ये सेशन के लिए मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट ऑलरेडी थी आपसे, और दो चीजें जो मैं स्पेशली यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि यू हैव ऑलवेज बीन लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. जब भी कोई भी प्रॉब्लम कैसी भी हुई है कहीं से सॉल्व नहीं, यू हैव ऑलवेज बीन दैट problem solving person. And I remember my initial days in my organization, and I think 7-8 months का continuous support आपसे मुझे मिला उस टाइम पे. तो एंड उसके बाद तो फिर जो हमारा टारगेट था मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, उस टारगेट पे फाइनली पहुंची. थैंक यू सो मच. यू हैव ऑलवेज बीन द बेस्ट सोल्यूशन टू माय प्रॉब्लम. और आज के सेशन के लिए सबसे अच्छी बात ये कहूंगी कि सेशन बहुत इंटरेक्टिव था. पूरे सेशन के दौरान कनेक्टेड फील हुआ, तो बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच. Thank you, Surbi. Thank you so much. We are really thankful for the participation, as well as we are thankful specifically we regarded your contribution. यार ये slides जो भी आप देख रहे हो इसमें बहुत सारा selection and hard work. That's for this woman. Always have the appreciation. अगर slides पसंद आई हो, credits go to her for a lot of creation. And then we'll have the next person who wants to speak now. I can go. Yeah, Gopal, go ahead now. Yeah, I like the session very much. I was looking, in the starting you asked what I was looking for, and initially I didn't know then. But yeah, it was a very grateful session. I liked it very much. But I have a question which I guess if you can able to answer, yeah, I will ask you later. Ask na, come on. Okay, so in the second session, second part of the session, you said कि you have to what you say, आपको expectation नहीं रखनी चाहिए. some आपने किसी का बताया था कि expectations को थोड़ा सा you have to lower down. You can control your anger. So yeah, how to lower your expectations? Listen, if you are because we are because everybody else I think we don't have the question, but अगर जो भी अपन उस word से समझेंगे. Exactly. Either you can be Rachel or you can be Phoebe. Phoebe never had expectations. Yeah. And that's why she ended up dating most men, and at the end she was the most happiest. That was the most happiest marriage in the show. Yeah, she was weird, wonderfully weird. So yeah. I always looked for a family, and then she said to Mike, "You are my family." So exactly. She had the hardest life, and she was the happiest because her expectations were always low. Whatever used to come, she used to take it happily, and she made the weirdest people feel special. And she wasn't expecting anything. Exactly. Very honest as a woman. So yeah, that's the best example I can give. She looked at everything equal. She used to get sad, but okay. Yeah. Sure. Next up. Nakul,
I would say it's a wonderful session, and I agreed with Surbhi that you are very supportive man I never ever seen. And yeah, actually, I love your all sessions. I love your session before I see, I don't remember, but I love your all sessions. Very great. What a love that is not even remembered. No, actually, I love it. True form of love. True form of love. You don't remember it. Exactly. You know, at times you might meet a new. Nakul, but I would like to disagree here कि ऐसा नहीं होता है. True love होता है लेकिन चीजें याद नहीं रहती हैं. मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है याद रहने की है. तो Okay, thank you. कभी true love कुछ ज्यादा हो जाता है कि आपको you are blind at all. Didn't remember anything. We'll have your session about love. मेरे इतने सेशंस हो गए कि अब याद ही नहीं आ रहा उसे. Hey, Bishmeet will take the session of love with us, interactive session on love. Bishmeet Kaur Bhatia will be leading the session. बहुत knowledge बहुत अच्छा है इसका, है ना? Let's move on. Let's one by one go ahead, यार. The people we don't hear often from. Shantanu, can you just give your feedback about the session? सर फीडबैक नहीं सर, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि सारी सीनियर्स हैं, तो मेरा भी एक क्वेश्चन था आपसे, और सर मतलब कोई भी आंसर कर सकता है, तो सर मैं पूछूं? बोलो सर, पूछो. बिल्कुल सब आपके एकदम अपने. दिस इज अ फैमिली. आई मीन 9-10 लोग हम बिन लाइक अ फैमिली अभी तक सुबह से. सर क्योंकि सेमिनार में सारे ही सीए हैं और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं सकता कि मतलब इतने सारे सीए एक साथ, और मेरे लिए सारे सीनियर भी हैं. तो सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मैं भी सीए फील्ड में ही हूँ, और सर मतलब मेरा बहुत इंटरेस्ट है सीए में, लेकिन उस इंटरेस्ट को मैं अपने पैशन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा. मतलब इंटरेस्ट है कि मतलब पढ़ने में भी मतलब काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, लेकिन एक पैशन वाली बात होती है ना कि मतलब दिन रात बस वही बात दिमाग में चलती रहे, उसको मतलब एक होता है ना लक्ष्य को प्राप्त करने वाली जो बात है, तो वो चीज़ जनरेट नहीं हो पा रही माइंड में. तो उसके लिए क्या करूँ मैं? एक्चुअली बताता हूँ, ज्यादा दिन रात दिमाग में चलने लग गया ना तो उसे सनक कहते हैं, पैशन नहीं कहते. उसको उसके टाइम पे इज्जत दो, बाकी टाइम पे उसको मत सोचो, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे. लाइफ में ये रूल है, गोल्डन रूल याद कर लो. एक ही चीज को ज्यादा सोचते रहोगे ना, वो कभी प्राप्त नहीं होगी. Like अभी Bishmeet and I were talking about true love, you know, when you find true love, when you stop looking for it. Yes. तो आप उसी चीज के बारे में 24 घंटे सोचोगे ना, तो कुछ ना कुछ बवाल अट्रैक्ट करके ले आता है. But can I add one more thing here? Yeah, please. शांतनु, मैं यहाँ पे एक छोटी सा सजेशन और देना चाहूंगी कि सीए को लेके, इस प्रोफेशन को लेके आपका पैशन जो है ना वो कभी मुझसे नहीं आएगा, बट प्रैक्टिकली जब आप काम करते हो ना, वहीं पे आपको वो पैशन में आपसे कन्वर्ट करना है. तो जो काम कर रहे हो उस काम से प्यार करो, अपने आप आपको लगेगा कि यू आर पैशनेट अबाउट द वर्क यू आर डूइंग. बुक्स के लिए कभी पैशन नहीं आता. बुक्स के लिए नहीं आएगा, बिकॉज़ क्या होगा ना, सेक्शन याद करके 4 सेक्शन बोल दिए एक के बाद एक लाइन से कोई फर्क नहीं है. लेकिन एक बार कभी सोच के देख, इतना पावर होता है अपने पास कि मतलब कोई बंदा लिटरली अगले दिन जेल जाने वाला होता है, अपन छुड़ा के उसको कहते तेरी पेनल्टी भी माफ है, तेरा टैक्स भी माफ है, सब माफ है, घर चल. पावर बहुत है बॉस, कुर्सी में पावर बहुत है. बट यू हैव टू स्टार्ट, यू नो, डोंट वर्क फॉर द एट द एंड प्रोडक्ट के लिए मत वर्क कि पावर आएगा. एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग. सीखने के लिए, कुछ नया समझने के लिए. कुछ भी पढ़ रहा है, she said it very beautifully, काम से प्यार करने लग जाओ. When you start loving your work ना, you start looking at these things differently. वो पैशन आपको आपके वर्क पे सही मिलेगा. इम्प्लीमेंटेशन जो जब स्टार्ट होगा ना, तब पैशन अपने आप शुरू हो जाएगा. गोपाल को देखो, नहाता नहीं 15-15 दिन सीए के चक्कर में. बताओ ऑडिट में कितने आए थे? 80+ है भाई. इम्प्लीमेंटेशन 4 महीने इसलिए बढ़ गई है. या जोक्स अपार्ट, लेकिन जो भी आप जो पढ़ रहे हो या जो भी कर रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन जब उस चीज का आने लगेगा, मतलब अभी मेरी 1-2 दिन पहले या थोड़े टाइम पहले ही नकुल से बात हुई थी, एंड आई एम टेकिंग डीटी क्लासेस ऑफ विनोद गुप्ता सर. तो इसने एग्जैक्टली यही कहा कि यार ये ना तेरे को डीटी पढ़ाने का तरीका नहीं बताएंगे, लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है उसका बता देगा. एंड आई एम एंजॉयिंग डीटी लाइक यू नो, मतलब मेरे को पहले उसका खौफ लगता था, नाउ आई एम एंजॉयिंग इट. मैं दिन में 2-2 ढाई क्लासेस देख लेता हूँ. तो आप अगर उसको इम्प्लीमेंट करना सीख लोगे तो आई गेस दैट वुड बी हेल्पफुल टू यू. परफेक्ट. थैंक्स सो मच. आई एम प्रैक्टिसिंग.
I am तो practicing अभी, but still I don't enjoy my work. मेरे को भी कोई तरीका बता दो. Done. Darshika, we'll have that done. We'll have it done. But we'll do it. I'll do it in a different session. Maybe we can have an interaction over how to start enjoying what we're doing. Because if you don't love what you do, there's no point in doing it. You know, you have to enjoy the thing that you're doing. Anything, be it Vishmeet wali And even Nakul, Nakul, it is a wonderful one. Yeah. Okay. Darshika, your feedback of the session is also welcome. Please. Yeah, it was a wonderful session, especially like you interact. Normally क्या होता है जिस one day session तो थोड़ा सा boring हो जाता है. So it was wonderful, especially the anger part. I'm going to definitely try now. वो consequence वाला आपका solution जो है आएगा तो I'll definitely try it and control my anger. Feedbacks and suggestions are always welcomed here. It's like a home. Aurora's Canvas का आपको लोगो दिख रहा होगा, वहाँ पे जाके सब्सक्राइब मारो, वो आपको इमोशनल वीडियोस जैसे इमोशंस रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे. But you can always throw in your feedback and your video feedback, all of you, about the session. You can make a face cam video and we can share synopsis on my Instagram. My Instagram and Twitter is @NakulJeet. I'll want you guys to follow and we'll post our feedbacks there. Apart from that, अभी कौन रहेगा? बाकी सब लोग आ चुके हैं. Because हमें फिर गाना सुनना है, मैं उसका भी excited हूँ. Kanika, we are left with your feedback. If we can have your feedback. I think everyone has said, and I agree with all of them. But I want to add, before the session, my mother used to say that I have anger issues, but it's good to see that people like me are also having the same problems. It's not only I am the exceptional or alien. So yeah, and the second thing I want to say, I think our profession is about networking and connecting. So these type of sessions where all the participants are, whether CAs or halfway CAs, so it's always have their own benefit of connecting with other people who are with the same profession. Yeah, totally agree. So thank you, Nakul, for that. We'll go ahead more. Of course, it was a wonderful session. You are a great orator, I must say. Thank you so much. Thank you so much. Always a pleasure to be of interest for my audience. Thank you, Vishmi, for the round of applause. And we have come to the important part. Very important. हमें शुरू में आशुतोष सर ने प्रॉमिस किया था कि वो गाना सुनाएंगे. And now आशुतोष सर अपना फीडबैक देंगे. फिर हमें अपनी मधुर आवाज सुनाएंगे. सर, आशुतोष सर, over to you, sir. Audio. Yes, audio. हाँ. Yes, sir. Are you hearing? Yeah. पहले आपका फीडबैक और फिर आपका गाना. हाँ जी, हाँ जी. मैं कहूँगा कि सेशन काफी अच्छा रहा. मेनली एंगर मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से डील किया गया. आप के जो भी आंसर्स थे वो बड़े कन्विंसिंग थे. कोई भी क्वेरीज या कोई भी क्वेश्चंस के या किसी भी सिचुएशंस के आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है. यू आर ए गुड काउंसलर. बट आई वुड लाइक टू हैव मोर फ्रॉम यू. I would request that you arrange more and more sessions like that. And we are professionals, and some professionals challenges are also there, and we would like to have hear for that from you. Done, sir. Done. Always, sir. Always there. I'll work as much as possible. अब आप connection में हैं, just keep on. We'll connect on WhatsApp, and you can always discuss what else we can do, and we can always share your feedbacks. Here, it's all a family. I never call Aurora's Canvas as a team or as a group. We always say the entire team Aurora Canvas is a family, and the certificates and your mails also had the entire team of Aurora Canvas invites you. People in here, just because you connected with us once, you're a part of the family, and we always welcome you. Your suggestions are welcome, and always, sir. आपका गाना आप सर एक बार आपकी आवाज सुनना चाहेंगे. सबके सब वेट कर रहे हैं अभी. बिल्कुल. नहीं सर. मैं स्ट्रेंजर से शुरू करूंगा, देन मुखड़े पे आऊंगा. केवल आपको 2 मिनट ही लगेंगे. वो भी नहीं, 1 ही मिनट लगेगा. रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का. रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का. के मर के भी याद किसी के आंसुओं में मुलहल करी से बार बार. जीना इसी का नाम है.
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाकी सर एक इस गाने के बारे में ना मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, इसमें कहता है हाँ किसी जी। की मुस्कुराहटों पे हो सके तो हो निसार, फिर कहता है दर्द मिल सके तो ले उधार। सर उधार में कहाँ मिलता है? एक बार मुस्कुराहटों पे निसार हुआ मेरा दोस्त 11वीं कक्षा में, उसकी लड़की के स्कूल वालों ने जो दर्द उसे दिया है ना सर, उधार में नहीं ब्याज समेत दिया था सर। बहुत दुखी है वो। उसके भी घुंघरू टूट गए है कैसे? उसके भी बहुत बुरा हुआ सर उसके साथ। मैं कहता हूँ दर्द तो मिला। And Paras, with your feedback, I'll ask you to formally conclude the session and formally just thank our audience and have a formal vote of thanks from your side. Yeah. Give your feedback and then you can formally thank the audience. Nakul, I will conclude on a point that sometimes I am in awe with your knowledge. Matlab, at the age of 27, you have so much knowledge. Matlab, you are conducting a session at the age of 27 and giving us a wisdom of your knowledge. I'm highly impressed with your knowledge. Thank you so much. And Surabhi, can you formally give a vote of thanks for the participation? नकुल, यहाँ पे मैं तो सबसे ज्यादा आपकी एक चीज के लिए आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगी तो आपकी भागवत गीता की नॉलेज है ना, दैट्स अमेजिंग। मतलब मेरी आज तक आपसे कोई भी प्रॉब्लम पे अगर बात हुई है तो आपने सोल्यूशन उसका भागवत गीता से ही दिया है। मैं मोटिवेटेड बहुत हूँ कि मैं उसे एक बार प्रॉपर्ली पढूं, लेकिन आई होप मैं इस लॉकडाउन में पढ़ लूं एक बार। लॉकडाउन खत्म होने को है, आई होप ही है अभी तो कोई बात नहीं। आई मीन जब तक हम घर पे हैं। एग्जैक्टली नहीं, अभी तो हमारा तो वर्क फ्रॉम होम अभी 2 महीने चलेगा ही ना। एग्जैक्टली नहीं सुरभि, बट आपने कुंजी तो पकड़ ही लिया। मेरा फोन नंबर तो है, जब भी डायल करा कुंजी बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। रेडी रेकनर है अपने पास। करेक्ट, मेरे लिए रेडी रेकनर ही है ये। थैंक यू सो मच गाइस, फॉर्मली थैंकिंग ऑल द पार्टिसिपेशन। शांतनु, आई होप अगर आपको एक बार और अपने क्वेश्चन का आंसर चाहिए, आई वुड से आशुतोष जी हमारे सबसे सीनियर हमारे बीच में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। कुछ अगर सर आप ऐड करना चाहो। आशुतोष को था कि पढ़ाई के लिए अगर पैशन नहीं आता है तो हाउ टू गेट दैट एडेड। आई मीन कुछ है सर आपके पास, बिकॉज सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस से आपने सीएस बनते हुए देखे हैं सर। हम खुद बने हैं, एक दो दोस्त बने हैं, बट आपने तो अपने अंडर जूनियर्स को बनते देखा है। तो कोई खास फीडबैक जो शांतनु के लिए हो कि कैसे वो पैशन लाए अपने अंदर? ये हमारा जो फील्ड है ना, उसमें सबसे ज्यादा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है ना। तो आप कभी हार ना माने, क्योंकि आपको लड़ते रहना है। आप भले ही अपने पैशन को बनाए रखने के लिए कुछ हॉबीज आप क्रिएट कर, जैसे मैंने अपने गाने की हॉबी क्रिएट किया है, वैसे आप उससे कुछ कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे आपको कुछ जो मूड स्विंगिंग वाला मिलेगा फंडा, तो आप बने रहें उसमें, अपनी फील्ड में बने रहें। Perfect. Thank you so much, sir. With a formal thank you, and Shantanu, don't worry, I'm gonna have you added to my network, and afterwards, कभी भी कोई issue कैसा भी होता है, feel free to reach out on WhatsApp, and anybody else who are not in regular touch with me, just don't mind if I don't reply for 24 to 48 hours. आ जाएगा reply जरूर. Sometimes you're stuck into different things, but you'll definitely get a reply. I promise that. Okay. My email and every contact is with you guys. So thank you so much for today. All love and amigos. See you again. Okay, bye-bye. Bye. Bye. Thank you. Bye.